extended, but sorry. Yeah, go ahead, please. Just a second. But they had extended till for the Challan Come statement, due date was 30th April, but they had extended till 31st May. Again, they had reduced the rate also by 25% if you have paid or credited in your account from between 14th May 2020 to 31st March 2021. From April 2021, there is no relaxation in rate. You have to deduct TDS at the rate prescribed in the section, according to section. They had relaxed in issue of TDS certificate also because we had filed late returns, so we have to issue TDS certificate accordingly. So issue of TDS certificate for Form 16 for the year financial year 2020-21, original due date was 15 June, but they extended till 31st July. 16A is also extended till 31st July, but they had not mentioned anything regarding TDS certificate for 26 QB, QC and QD. So we expect that कि जब उसकी return filing की date बढ़ गई है, then it should be the date after 15 days of the return filing. Okay, but you have to remember that tax payment date is not extended and TCS return filing date is not extended. ओनली टीडीएस रिटर्न फाइलिंग की डेट एक्सटेंड हुई है और टीडीएस सर्टिफिकेट की डेट एक्सटेंड हुई है। टैक्स पेमेंट की डेट कभी भी इन्होंने एक्सटेंड नहीं की, ना तो इनकम टैक्स में ना टीडीएस में, कभी भी इन्होंने टैक्स पेमेंट की डेट एक्सटेंड नहीं की है। एंड टीसीएस रिटर्न के लिए भी सब लोगों ने बहुत ह्यूज क्राई किया कि जब टीडीएस की रिटर्न एक्सटेंड हुई तो टीसीएस की भी होनी चाहिए, बट दे हैड नॉट एक्सटेंडेड टीसीएस रिटर्न डेट। Okay. Then to whom tax audit is applicable? अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत मामूली सा, ये तो हमने शुरू में आर्टिकल 6 में ही पढ़ा था कि टैक्स ऑडिट किसको एप्लीकेबल है, बट बिलीव मी दिस सिनेरियो हैज चेंज नाउ। पहले हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के केस में यदि टैक्स ऑडिट है तो मतलब टैक्स ऑडिट है तो टीडीएस एप्लीकेबल है, और बाकी अदर एसईसी के केस में डे 1 से टीडीएस एप्लीकेबल है। बट 2 more point has added inserted, one from 1st September 2019 194 M आया, उसमें what they are saying कि if the person is in case of individual and HUF, if the person is not in tax audit, then also he has to deduct TDS at the rate of 5% if he is making payment for any contract, for any commission or for any professional under section 194 C H and K. Okay, and second amendment अभी 1st April 2021 से ऐड हुआ बिकॉज काफी कंफ्यूजन था कि जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ले रहे हैं उनको टीडीएस एप्लीकेबल है कि नहीं। सो उन्होंने वो सिस्टम ही हटा दिया। दे हैव मेड दैट कि इफ द individual and HUF have turnover in business turnover is more than 1 crore and if he is in profession and professional receipt is more than 50 lakhs, then they are liable to deduct TDS if even if they are not audited under 44AB. तो ये दो नए अमेंडमेंट टैक्स ऑडिट के टीडीएस के लिए एप्लीकेबल हो गए हैं। तो वी शुड कीप इन माइंड कि ऐसा नहीं है कि यदि वो इंडिविजुअल एचयूएफ टैक्स ऑडिट में नहीं है तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। वी हैव टू कीप दीज फिगर्स इन माइंड। 194I, there is no change in 194I, but I want to take it because I want to take 194IA and IB. So to make comparison between 194I, IA and IB, I have made this slide because 194I is in 194I, if any person is paying rent to any resident person, then if the amount is more than 2,40,000 in a year, then he has to deduct TDS at the rate of 10%. We all know. If the owner of the property is non-resident, in that case 195 will be applicable. 194I is not applicable to him. At the and this is also at the time of payment of credit, whichever is earlier. And that what I say, so inform you that in case of individual and HUF, again if his business receipt is more than 1 crore or professional receipt is more than 50 lakhs, then he again rent TDS on rent liability will be arise. One more thing, that rent is on rent and TDS on rent under 194I is pay wise, not property wise. If I am paying rent to two different person to 2 lakh rupees for one property, in that case
I am not liable to deduct TDS because the amount is below 2,40,000. Okay, so it is not property wise, it's a pay wise. But if I am paying to one person for two property, but total amount is more than 2,40,000, then I have to deduct TDS on that. यदि मैंने दो ऑफिस लिया हुआ या एक घर या ऑफिस दोनों उससे लिया हुआ है, एक का मैं 1,50,000 पेमेंट कर रही हूँ साल का और एक का मैं 1 लाख पेमेंट कर रही हूँ साल का, तो इट बिकम 2,50,000. एंड यदि मैं दोनों को ही मेरे बिजनेस में एक्सपेंसेस बता रही हूँ, देन आई हैव टू डिडक्ट टीडीएस ऑन द सेम पार्ट on full 2,50,000. 194 IA, it's again ranked on sorry, it's on purchase of immovable property. ये भी एक नया सेक्शन आया था कि हम लोगों को if we are buying any immovable property and the value of the property is aggregate consideration in the agreement is more than 50 lakhs, then we have to deduct TDS at the rate of 1%. इसमें दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है. The deductor can be any person, but deductee should be resident only. Again, in case of non-resident, 195 will be applicable. 194 IA will not be applicable. One more thing is that if the aggregate consideration includes facility like club membership fee, car parking, electricity, other amenities, like in the agreement itself, then you have to deduct TDS on that part if it exceeds 50 lakhs. तो बेटर, कई बार ऐसा होता है कि हम एग्रीमेंट में जब हम बिल्डर से लेते हैं तो सारी एमिनिटी साथ में डाल के ही वो एग्रीमेंट करते हैं. ठीक है, तो इन दैट केस पूरे जो टोटल हमारा अमाउंट आएगा इसको मिला के, यदि हमने हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख है बट ये सारे एमिनिटीज का अलग से वो 2 लाख रुपीज ले रहा है, देन वी हैव टू पे टीडीएस ऑन 52 लाख, नॉट ऑन 50 लाख. तो इन एमिनिटीज को मिला के भी यदि 50 लाख से ऊपर चला जाता है एग्रीमेंट के टाइम में, एग्रीगेट कंसिडरेशन के टाइम में, देन इट विल बी इंक्लूडेड. बट इफ यू आर मेकिंग एनी अदर एग्रीमेंट, और मतलब आप अलग से यदि बाद में इस फैसिलिटी के लिए पेमेंट करते हो, देन इट विल नॉट इंक्लूड इन योर एग्रीगेट कंसिडरेशन, क्योंकि वो एग्रीमेंट का पार्ट नहीं होता फिर उस समय. ओके, तो एंड ये प्रॉपर्टी वाइज है, पे वाइज नहीं है. ये भी एक ध्यान में रखने का है. लोग सोचते हैं कि हमने 60 लाख का घर लिया, 30 लाख एक को दे देंगे, 30 लाख एक को दे देंगे, हमको टीडीएस नहीं डिडक्ट करना पड़ेगा. नहीं, ऐसा नहीं है. ये प्रॉपर्टी वाइज है. इफ यू आर मेकिंग एग्रीमेंट फॉर मोर देन 50 lakhs, यदि एग्रीगेट कंसिडरेशन मोर देन 50 lakhs है, then even if there is a seller or 3 seller, then also you have to deduct TDS. So even in case of joint holders, we have to deduct TDS according to you. Yes, yes. Because I have bought a property from joint holders, the value is 60 lakhs. I am paying 30 lakhs to both of them. तो उसमें TDS डिडक्ट करना पड़ेगा सर. On 30 lakh you have to deduct TDS because aggregate consideration is more than 50 lakhs. And तो property. ये चीज बहुत कंफ्यूजन है अभी भी लोगों को कि ये पेई वाइज है. यदि मैंने 50 lakhs यदि सेलर को पेमेंट किया, then only I have to deduct TDS. This is not like that. This is property wise. This is not pay wise. अभी ये 194 IB. This 194 IB is again individual or HUF, rent paid by individual or HUF. ये सेक्शन भी आए हुए टाइम हो गया है, बट टू रिमाइंड यू कि दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल HUF. इवन सैलरीड पर्सन को भी ये सेक्शन एप्लीकेबल है, और बहुत सारे सैलरीड पर्सन इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं. दे आर क्लेमिंग HRA, they are showing more than 50,000 rent to save their HRA. But if they are showing more than 50,000 as their rent per month, then they have to deduct TDS at the rate of 5% of their flat owner or property owner. ये उसी को कर्व करने के लिए इन्होंने ये नया TDS सेक्शन लेके आए थे, क्योंकि बहुत लोग HRA में ज्यादा रेंट बता के अपना HRA में ज्यादा कम वो कर लेते थे. तो इसके लिए इन्होंने लेके आया कि 50,000 पर मंथ से ज्यादा यदि इंडिविजुअल एंड HUF आर पेइंग, then they have to deduct TDS at the rate of 5% even if they are not in tax audit. तो सैलरीड पर्सन को भी ये हो जाता है एप्लीकेबल, और कोई नॉर्मल पर्सन को भी हो जाएगा if they are paying more than 6 lakh or 50,000 more than 50,000 per month. So rate will be 5% and the thumb rule of TDS at the time of payment of credit, whichever is earlier.
नाउ 194IB, मैं बहुत फास्ट नहीं जा रही हूँ ना, 194IC, क्योंकि थोड़ा टाइम का वो हो गया है तो थोड़ा मैं फास्ट जा रही हूँ। नहीं, ये ऐसे ही पुराने सेक्शन है तो ठीक है, चलेगा। हाँ, इसीलिए पुराने हैं तो खाली ब्रश अप करना है, थोड़ा जो मेन पॉइंट है वही बताना है इसके लिए। तो 194IC ये सेक्शन है डेवलपमेंट एग्रीमेंट के लिए। तो दिस सेक्शन हैज ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑन 194IA and it is applicable in case of joint development agreement only. This section is only for joint development agreement, and the receiver of this receiver of consideration should be only individual and HUF, and payer can be any person. Okay. Now one important point is that if the consideration is received in kind, not in cash, then this section is not applicable. No TDS deduction will be there if the person is getting in kind, consideration in kind. Like if I am giving my land, and in lieu of that land I am getting 5 flat, in that case TDS will not be applicable on that. But yes, if I am receiving in cash, then this section will hit and I have to they will deduct my TDS. Okay. And again there is a thumb rule that at the time of payment or credit, whichever is earlier. So in 194IC, important point is that if the consideration is received in kind, then TDS will not be applicable on that. Again, if the payer of consideration is non-resident or receiver is non-resident, then 190 receiver of the consideration is non-resident, then this section will not be applicable. It is only for resident, individual or HUF. In 194J, हम लोगों के दिमाग में शुरू से ये है कि 194J में सिर्फ 10% का ही TDS होता है, और वही दिमाग में अभी तक भी चलता है बहुत बार. But they had made 2 changes. One with effect from 1st April 2017, that the fees for call center, they may reduce the rate. The rate was 2%. Even if we have to deduct TDS under section 194J, but TDS rate is 2% in case of call center. And in case with effect from 1st April 2020, fees for technical services, it become 2%. Like जो मैंने आपसे AMC की बात कही, इसमें टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है. तो जैसे हमारा होता था हॉस्पिटल में इक्विपमेंट, बड़े बड़े इक्विपमेंट होते हैं जो भी टेस्ट करने के या MRI के या रेडिएशन के, तो उनके लिए जो AMC दी जाती है, इन दैट AMC टेक्निकल पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है. वो जो नॉलेजेबल जो पर्सन होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है AMC के लिए. फॉर दैट पर्पज दिस सेक्शन रिड्यूस द रेट फॉर 2%. तो यदि वैसा कुछ है कि उसमें टेक्निकलिटी चाहिए AMC में, देन 2% आपको 194J में डिडक्ट करना है. ये एक नया सेक्शन जो आया था 194N. ओके. अभी ये सेक्शन में थोड़ा ये नया चेंजेज आया है. दिस विल टेक सम, आई विल स्लो द स्पीड बिकॉज ये 194(9)N से हमारे चेंजेज स्टार्ट हुए. इन फाइनेंस एक्ट 2019, this section has been introduced, and this section is saying if the payee is withdrawing more cash from banking company or cooperative society or post office exceeding 1 crore rupees, then the TDS to be deducted by that payer at the rate of 2%. Okay. तो ये 1 जुलाई 2020 में उन लोगों ने अमेंड किया इस सेक्शन में. And now what they are saying कि if the withdrawer has not filed his return of income for all the 3 consecutive assessment year and then he is withdrawing cash, तो उन्होंने 2 स्लैब कर दिया कि यदि 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, then the TDS rate will be 2%, and if he is withdrawing more than 1 crore, then the TDS rate will be 5%. So this change will effect from already effected from 1st July 2020. कि यदि आप, और ये देखना जो कि 3 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर, तो 3 साल की रिटर्न फाइल होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 साल की है तो चल जाएगा, 3 साल की रिटर्न फाइल हुई होनी चाहिए. देन ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, अदरवाइज वो ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा एंड TDS विल बी डिडक्टेड अकॉर्डिंगली. कि अभी उसका TDS ओनली ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड. ठीक है. वो कैसे कैलकुलेट होगा कि like Mr. Saving is withdrawing, he has not furnished his return of income from 17, 18, 18, 19, 19, 20. ये हम क्यों 19, 20 का देखेंगे? यदि अभी इस साल के लिए यदि हम देखते हैं
तो हम 2020-21 का नहीं देख रहे हैं, बिकॉज ड्यू डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 इज नॉट येट एक्सपायर्ड. हमें 30 सितंबर तक का टाइम है, तो 30 सितंबर तक हमें सिर्फ 2019-20 तक का देखना है. आफ्टर 30 सितंबर इफ ड्यू डेट इज नॉट एक्सटेंडेड अगेन, तो 30 सितंबर के बाद में हमारा ये ईयर चेंज हो जाएगा. देन इट विल बी 18-19, 19-20 एंड 2021. तो जब तक ड्यू डेट के अंदर है तब तक हमें 2019-20 का ही देखना है. तो इसने 3 साल तक की इसने रिटर्न फाइल नहीं की है, and he has withdrawn on 1st April 15 lakh rupees. So at that time aggregate amount withdrawn by him is only 15 lakh. तो कोई भी TDS नहीं आएगा. On 10th May he again withdraw 25 lakhs. So aggregate value become 40 lakhs rupees. तो जब 40 lakhs rupees हो जाता है, मैं बीच में मैंने ध्यान नहीं दिया, इसमें वो भी आया हुआ था, क्वेरी आई हुई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया. मैं ये इस टेबल के बाद में ले लेती हूँ. कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिला दूंगा, डोंट वरी, यू गो अहेड. एक्चुअली मैंने वो चैट वाला वो बॉक्स नहीं खोला हुआ था, तो मुझे ध्यान ही नहीं आया कि नहीं, ये आपका ये अभी खत्म होता तो मैं आपको बताता था. इस टेबल के बाद में मैं एक बार ले लेती हूँ बीच में. तो जैसे 10th मई को उसने 25 लाख ही विथड्रॉन, देन टोटल एग्रीगेट अमाउंट बिकम 40 लाख. सो टीडीएस विल बी डिडक्टेड 40 - 20 जो एक्चम थ्रेशोल्ड लिमिट है. 20 के बाद में जो 20 लाख बचा उसके ऊपर 2% टीडीएस कटेगा, 40,000 इट बिकम. 17th मई को अगेन ही विथड्रॉ 20 लाख, तो एग्रीगेट अमाउंट बिकम 60 लाख. तो जो 20 लाख उसने विड्रॉ किया उसी के ऊपर 2% लगेगा, क्योंकि उसके पहले वाले के ऊपर ऑलरेडी टीडीएस हो चुका है. On 28th May, he withdrew 45 lakhs. So aggregate amount from 1st April to 28th May, it become 1 crore 5 lakhs. Then two slab will be applicable to him. Till first 1 crore, he has TDS will be 2%, and after that on 5 lakh, TDS will be 5%. Okay. तो 60 में से हम 1 करोड़ के लिए माइनस करेंगे तो 40 लाख के ऊपर हमारा 2% हो जाएगा, और 5 लाख के ऊपर हमारा 5% टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा. तो 1 करोड़ लाख 5,000. एंड व्हेन ही विथड्रॉ 40 lakhs on 16 June, then it become 1,45,000. तो पूरे 40 lakhs के ऊपर 5% टीडीएस डिडक्ट होगा. तो 194N में इस ढंग से स्लैब वाइज उन लोगों ने चेंज किया है, एंड दिस इज इफेक्टेड फ्रॉम लास्ट ईयर ओनली. ये अभी सबके 26A में मिल रहा है. 26A में आपको दिखेगा अभी 194N. एंड एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि 194N का टीडीएस हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते. जैसे हम कभी 194J, C का सबका यदि इनकम उस साल में नहीं लिए है तो हम कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए. 194N का टीडीएस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा. यदि आपने उस साल क्लेम नहीं किया तो वो लैप्स हो जाएगा. तो रिटर्न भरने के टाइम में ये आप ध्यान दीजिएगा कि ये आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते इसका. ठीक है. जमील जी का क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ एक बार. टीडीएस ऑन आईटी प्रोफेशनल वर्किंग ऑन फ्रीलांसेस विल बी 2% और 10%. आईटी प्रोफेशनल का 10% ही होगा, क्योंकि वो प्रोफेशनल है, इसलिए वो 2% में नहीं आएंगे. इज टीडीएस एप्लीकेबल वेयर development agreement is entered with society and payment is made to flat owner. TDS हम इस केस में क्या हो रहा है कि TDS development entered with the society and payment is made to flat owner. यदि हम फ्लैट ओनर को पेमेंट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो TDS आएगा इसमें. What about hardship allowance paid in lieu of rented alternate accommodation is TDS? ये मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है. What about hardship allowance? सुरेश जी आप ये बता सकते हो जारा जी का जो क्वेश्चन है. What about hardship allowance paid in lieu of rented alternate accommodation? Kirti, I cannot see this question. Where is it? Yeah. What about hardship allowance? ये hardship allowance I am hearing first time. So can you clarify the question? किसने पूछा ये? Ma'am. Yeah. Yeah, ma'am. Instead of them paying alternate accommodation, very often the developer gives you
what they are calling hardship allowance to find accommodation of your own. Oh, okay. Okay, for that purpose you are So they are saying. calling it hardship allowance. Okay, okay. On that, no, TDS will not be applicable. It should not be applicable, right? No, 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 no. वही मैंने कहा कि वो क्वेश्चन मेरे को क्लियर नहीं हो रहा था कि वो That hardship means allowance. like if it is exceeding, sometimes they give hardship allowance beyond the amount of the rent. Yeah, but it's because it in lieu of that property, what the developer is taking is property. In lieu of that property, they are paying you this. Right, right. In lieu So of giving that- alternate accommodation. Yeah, so that amount is not his expenses. Right, That is right. so that's why TDS will not be deducted. That is expenditure for the developer. No? Yes. So the developer is paying in redevelopment of society. Yes. They pay hardship allowance and they pay some corpus amount. So Right. whether the TDS under 194 IC would be applicable in that, I think that is the question. Okay. Okay. So, but in 194, I see what they are saying ki in lieu of land, they are getting the property consideration. Correct. Okay. But nowadays in suburbs, what happens is the development agreement is entered with society and the payment is made to the flat owners. Yes. So there is a yes. confusion whether TDS is applicable under 194 IC or whether it is not applicable. या ये सबके लिए अभी तक भी कंफ्यूजन है क्योंकि इसमें एक दो केसेस में एक केस में ऐसा हुआ है कि वे लोगों ने कहा है कि नहीं टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा बट इन अदर केस दे आर सेइंग कि टीडीएस इज एप्लीकेबल टू दैट बिकॉज एग्रीमेंट इज विद सोसाइटी ओनली if you will see that the agreement is with society only but the beneficiary are member Yes, beneficiary yes. is a member तो Yes. ये अभी भी थोड़ा Confusion is there. कंफ्यूजन इज देयर कि अभी तक भी उसके लिए क्लियरिटी नहीं आई है हम लोगों ने इसको क्लियरिटी के लिए रिप्रेजेंटेशन दिया है कि प्लीज गिव दिस क्लियरिटी की क्योंकि अभी जितने भी ऐसा यहाँ बॉम्बे में तो मोस्टली जो भी हो रहे हैं एसआरए केसेस ही हो रहे हैं या रीडेवलपमेंट ही हो रहे हैं Yes. so in that So few case developers have started cutting TDS and few are not cutting. yes Yeah, many developers are cutting actually TDS. बहुत लोगों ने उसके लिए वो 15 एच लेने स्टार्ट कर दिए को लोग उसके लिए वो दे रहे हैं कि हमारा टीडीएस लोअर टीडीएस काटिए या मत काटिए वो सब डिक्लेरेशन देने स्टार्ट किए हैं लोगों ने मतलब हर बिल्डर अलग अलग ढंग से करा क्योंकि अभी तक भी इसमें क्लियरिटी नहीं आई है कहीं कोई भी क्लियरिटी नहीं दी उन लोगों ने कि ये एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा इन दैट केस क्या होता है जब भी कोई नया टाइप का ट्रांजेक्शन आता है देन रिप्रेजेंटेशन देने के बाद गवर्नमेंट को समझ में आता है कि इसके ऊपर क्लियरिटी देनी चाहिए क्लैरिफिकेशन देना चाहिए हाँ कि ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं समझ आ रहा है Thank you. in 194N on deductor to evaluate each of the recipient की उनको देखना है बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस we have to check whether the payee is has filed his return for 3 consecutive years or not तो like हम जो अभी 206A का compliance जैसे हम वेबसाइट पे चेक करते हैं वैसे ही उन्हें भी एक वो ये साइट पे दिया हुआ है and they can check for each and every PAN number whether they had filed their return for last 3 consecutive years or not. One more question is there that in case of newly formed organization, those who has no previous track record whether 194N will be applicable or not. तो इसके लिए I think कि this section will not be applicable because they are not liable to file the return. जब उनकी return की liability ही नहीं आई है, they are newly formed, then I don't think 194N will be applicable. But for that, you have to give declaration to the bank or to give some letter कि ये हमारी new organization है, so 3 साल के उनको compliance देखने की जरूरत नहीं है. Otherwise, they will deduct TDS क्योंकि उनको वहाँ पर वही दिखाई देगा कि वो नहीं उन्होंने फाइल की हुई है रिटर्न बट ये दिखने लग गया है मैडम अभी साइट पे हाँ मैं आपको दिखाऊंगी अभी ऑनलाइन दिखा दूंगी मैं इसीलिए देख रही थी कि यदि मुझे शेयरिंग करने मिले तो बेटर है आई कैन शो यू कि 206AB हाउ यू कैन चेक ऑनलाइन there is no need to take 26A or ITR copy from your that person to whom you are paying. 194O payment of e-commerce operator to e-com participant.
तो इसमें 5% दे है, if sorry the rate is 1% of the gross amount of sale or service or both. This section is applicable if any sale of goods or services has been provided by that e-commerce platform. Only advertisement, hosting any advertisement is not come into this section. And if the provision not applicable to amount received or receivable for hosting any advertisement or providing other services not in connection with sale of services. Like अभी आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम में बहुत सारे डॉक्टर्स ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं. इन दैट केस दिस सेक्शन विल बी एप्लीकेबल बिकॉज दे आर यूजिंग दैट प्लेटफॉर्म. But if there is only advertisement on any website, then this 194 will not applicable because there is no any sale of goods or services with, on that platform. Like Amazon से हम Flipkart, we are buying the goods, तो वो sale कर रहे हैं goods को, then this section will be applicable. But only hosting something, then this section will not be applicable to them. No TDS to be deducted if the e-commerce operator is an individual or HUF and the amount of gross amount of sales, services or both doesn't exceed 5 lakh rupees and he has provided his PAN or Aadhaar. So all the three conditions to be satisfied. ये छोड़ सकते हैं. हाँ. Now ये 194O and equalization levy. If you all know equalization about equalization levy, तो the first बार मैंने भी 194O जब read किया तो I thought कि ये दोनों तो सेम ही है. What the difference between equalization levy and 194O? Because equalization levy is again on the digital media, e-com. Then and 194 is also on that part. So what the difference between these two sections? In 194O and in equalization levy, in both the section, e-commerce operator is liable to deposit the tax. And in 194O, residential status of e-commerce operator can be resident. But in equalization levy, only non-resident e-commerce operator will be there. In case of e-commerce participant, only resident should be there. But in equalization levy, non-resident is there. So basically, this different. This is the difference between two. Customer can be resident or non-resident in both the cases. Rate is different. Rate in 194O it is 1%, and in equalization levy it is 2%. This new section has been introduced recently by our finance minister in budget speech. He's saying that I am providing relief to senior citizen for filing the income tax return. So the senior citizen with age above 75 years or more, this new section has been inserted. And what this section is saying, if the payee is a resident person, senior citizen, and payer is a specified bank, then they will deduct TDS at the rate in force, and the threshold limit not specified yet. And in this section, any particular specified time also not provided. कि TDS काटना है. तो अभी तक ये क्लियरिटी नहीं आई है कि वो बैंक में वो लोग किस समय TDS काटेंगे. हाँ, रेट इन फोर्स मीन्स हुआ कि ये कंडीशन, ये इनका क्या बोलना है कि सीनियर सिटीजन भी कोई एक डिक्लेरेशन देंगे, दे विल गिव अ डिक्लेरेशन टू द बैंक. लाइक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को देता है कि मेरा क्या इन्वेस्टमेंट है, मेरा क्या ATC का डिडक्शन है, क्या मेरा एग्जम्पशन है. अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयर इज कैलकुलेटिंग टैक्स on that person and deducting TDS from his salary amount. So likewise, they are asking senior citizen to give declaration to the bank, providing all the deduction allowable under section 6A, and the form is not yet prescribed. But so if they furnish that declaration to the bank will deduct TDS on that amount. They will calculate, bank will calculate their return of income computation, and they will deduct the TDS. बट इसमें एक लूप होल्स क्या है, इसमें कंडीशंस क्या है कि पेंशन जिसमें ये सीनियर सिटीजन को उसी को ही अवेलेबल होगी ये बेनिफिट जिनकी सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट इनकम है, नो एनी अदर इनकम. इवन इफ दे हैव डिविडेंड इनकम, देन आल्सो दिस सेक्शन विल नॉट बी एप्लीकेबल. सो इनकम शुड बी ऑन फ्रॉम पेंशन और इंटरेस्ट ओनली. ठीक है. इंटरेस्ट में भी मुझे लगता है कि ये इंटरेस्ट भी सिर्फ और सिर्फ बैंक का ही लेंगे. Because what they are saying, interest should be received or receivable from any account maintained by
by the senior citizen in such specified bank. तो यदि उन्होंने कोई बॉन्ड खरीदे हुए हैं या कोई और डिवेंचर्स वगैरह हैं, उसका भी इंटरेस्ट आ रहा है, देन ऑल्सो आई थिंक दिस सेक्शन विल नॉट बी एप्लीकेबल, बिकॉज दे आर सेइंग कि वो इंटरेस्ट भी उसी बैंक में जो अकाउंट मेंटेन किया उसी से ही होना चाहिए, एंड दैट इंटरेस्ट शुड बी फ्रॉम इन दैट बैंक ऑन विच बैंक पेंशन इनकम इज कमिंग. तो अभी इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि जो भी सीनियर सिटीजन है उनके यदि चार पांच जगह बैंक में अकाउंट है, then they have to club all the amount in one bank only if they want to take benefit of this section. Otherwise किस बैंक को वो डिक्लेरेशन देंगे और who will take the responsibility to deduct TDS? ठीक है, तो ये एक उनके लिए प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी कि they have to accumulate all the just a second. जिसमें भी पेंशन आती है उसी में ही उन्हें अपने एफडी सेविंग सारी उसी में ही उन्हें डालनी पड़ेगी, और देन दैट बैंक विल डिडक्ट टीडीएस अकॉर्डिंगली. बट ये तो बहुत मुश्किल का काम है सीनियर यही सिटीजन. मैं बोल रही हूँ कि वो रिलीफ बोल रहे हैं, ये रिलीफ एक तो बेचारा 75 इयर्स एंड अबव है, उसको आप हाँ. तो ये सब करो. मैं वही बोल रही हूँ कि ये रिलीफ कहाँ से है वो मुझे नहीं समझ में आ रही. और रिलीफ, और आप सोचिए ना कितने कम लोग होंगे जिनकी सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट से इनकम होगी. कोई ना कोई अदर इनकम, जैसे ही कोई भी थोड़ी सी भी अदर इनकम हुई, यदि 2-4 रुपए की भी हुई, तो ये तो बोलेगा कि नहीं एप्लीकेबल है. एप्लीकेबल नहीं. और ये सबसे मेन बात कि बैंक वाले क्या ये टास्क कर पाएंगे? अभी हम विड्रॉ करने जाते हैं तो 2 घंटे लाइन में लगने पड़ते हैं बैंक में. कोई भी काम करने जाओ बैंक वालों के पास स्टाफ ही नहीं है. हाउ दे विल कैलकुलेट दिस इनकम? whether they are capable to calculate computation of income of a person? तो ये कितना प्रैक्टिकली विजिबल होगा आई डोंट नो राइट नाउ, बट ये सेक्शन है अभी तक कहीं भी एप्लीकेबल नहीं हुआ, बिकॉज इसमें कोई भी डेट अभी तक स्पेसिफाइड नहीं करी है कि किस डेट से ये कब से उन्हें टीडीएस काटना है, वो अभी तक नहीं बताई. डिक्लेरेशन का फॉर्म नहीं बताया, सो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. अभी 194Q जो नया सेक्शन हमें तंग कर रहा है फ्रॉम 1 जुलाई 2020 से 21 से. So it has been introduced in Finance Act 2021 and it is effective from 1st July 2021. What this section is saying, कि if a buyer is making any payment or buying anything from a resident seller, then he has to deduct TDS at the rate of 0.1%. And if the PAN and Aadhaar of seller is not available, in that case, he has to deduct TDS at the rate of 5%. Okay. So what the condition for that? The aggregate amount of such purchase should exceed 50 lakhs in that previous year, and the gross receipt or turnover of the buyer from that business should be exceeding rupees 10 crore in the immediate preceding financial year. तो यदि हम अभी करंट ईयर के लिए जब देखने जाते हैं तो हमें देखना रहेगा कि फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 whether his turnover is more than 10 crore. If his turnover is more than 10 crore, then this section will be applicable to him. But again, वो 50 lakhs का जो purchase है, वो exceed होगा, उसके बाद ही applicable होगा. And for the resident seller only. यदि आपने non-resident से buy किया है, then this section is not applicable to him. तो वो 194O में चले जाएंगे हम. Then the buyer, central government, state government, local authority, they all are exempted from this section. This section is also not applicable if tax is deductible at source under any other provision of the Act. तो यदि मैं किसी दूसरे सेक्शन में यदि मेरा TDS आ रहा है, I have to deduct in any other section, then I am not liable to deduct in 194Q. And second condition is that one case is that if the TCS is already collected on under section 206C on that transaction, then also 194Q will not be applicable. But यहाँ पर एक थोड़ी सी उन लोगों ने ट्विस्ट दे दी है कि other than a transaction to which section 206C1H applies. तो यदि किसी ट्रांजेक्शन में ऑलरेडी TCS कटा हुआ है, जो अभी हो रहा है, कि सब बोल रहे हैं कि TCS तो कटा हुआ है तो अभी TDS भी काटना है क्या, तो यदि TCS कटा हुआ है 206C1H में उस ट्रांजेक्शन में, then also 194Q will be applicable. क्योंकि उन्होंने कहा है कि TCS 206C1H को छोड़ के यदि कोई और सेक्शन में कटा हुआ है, then 194Q is not applicable. Otherwise 194Q will be applicable to.
Section 206C1H is effected from 1st October 2020 and rate is 0.1%, and the 194Q is also with effect from 1st July 2021. Rate is again 0.1%. And what why I inform you that TCS is required to deduct if in one transaction both the section is applicable. 194Q have preference to deduct the TDS on that, even if 200 TCS already collected on that transaction. Now, what is 206C1H TCS? This is introduced in Finance Act 2020, and this is TCS on sale of goods. Date of effective is from 1st October 2020. What is this section? That this section is applicable when the seller is receiving. Please emphasis on the receiving. If the seller is receiving any amount, it is not saying कि sale amount. तो ये जो अभी तक जो चल रहा है, हम लोग जो भी TCS काट रहे हैं वो सेल बिल पे, सेल इनवॉइस पे काट रहे हैं, which is wrong. As per section, they have to deduct TDS on the amount sales consideration received by him, not on sale invoice. सेल इनवॉइस पे TCS नहीं लगाना है. जो चल रहा है वो रॉन्ग प्रैक्टिस चल रही है अभी तक में. इवन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी वो लोग TCS लगा के ही इनवॉइस दे रहे हैं, विच इज टोटली रॉन्ग. अकॉर्डिंग टू सेक्शन हमेशा TCS रिसीट पे रहता है, कभी भी ट्रांजेक्शन के टाइम में नहीं होता, वो हमेशा रिसीट पे रहता है. तो यदि हम द पर्सन हु इज रिसीविंग एनी अमाउंट फ्रॉम अ बायर ऑन सेल ऑफ गुड्स will collect TCS at the rate of 0.1%, and if PAN or Aadhaar is not available, then in that case 1% TCS will be deducted. The amount in this 261H, it is also we have to check that the turnover of the seller should be more than 10 crore in previous financial year, and for the current financial year the sale consideration including advance received on sale is exceeding 50 lakhs rupees. Okay, so every time if you will read the section, they are saying sales consideration, not the sale value, not the sale amount. So, and the buyer does not include central government, state government, or local authority, all are exempted to apply this section. This is the hot talk of in the town कि दो व्यापारी आपस में बात कर रहे हैं कि भाई तू TDS काटेगा कि मैं TCS लगा लूं. तो ये अभी हमें समझना है कि क्या एप्लीकेबल होगा उसके ऊपर में. ये दिस इज अ कंपैरिजन चार्ट कि 194Q और 261H में कि which section will be applicable and what the difference between the two sections. In case of 194Q, buyer is liable to deduct tax, and in case of TCS, seller is liable to collect the tax. Turnover limit is same in both the cases, 10 crore in case of 194Q, 10 crore for buyer, and in TCS, 10 crore of seller. Threshold of for purchase and sales consideration is same, 50 lakhs. Okay, and rate is also same, 0.1% in both the section, but if PAN is not furnished by the seller, then 5% in case of 194Q, and in case of TCS, it is 1% if PAN or Aadhaar is not furnished by the buyer. Amount on which tax to be in case of TCS, if the sales consideration is above 50 lakhs, then sales consideration is 10 lakh only, he has to collect the TCS. Time of collection, TDS का हमारा है at the time of payment of credit. TCS at the time of receipt. नहीं होगा कि ये TCS लगाना है कि TDS लगाना है. Preference, always preference is of to 194Q. यदि कोई एक ट्रांजेक्शन के ऊपर दोनों सेक्शन एप्लीकेबल हो रहे हैं, then okay, and
1st July applicable from 1st July 2021. 194Q is applicable from 1st July 21, and TCS is applicable from 1st October 2020. Due date for payment in case of TDS 7th of subsequent month, and for March it's at 30th April. But in case of TCS, it is 7th day of subsequent month. Return is also different for both the section. In case of TDS, it is 26Q, and in case of TCS, it is 27EQ. TS certificate is again different, 16A in case of TDS, and in case of 26C1H, it's a 27D. अभी ये जो consequences है, हमारी ये थोड़ी एक इंडियन मेंटेलिटी है कि हम कभी भी पेनल्टी या कुछ प्रोसिक्यूशन नहीं हो तब तक हम उस पर ध्यान ही नहीं देते, जब तक हमें फाइन नहीं लगता तब तक हम उस चीज को सीरियसली नहीं लेते. तो ये वैसे ही हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट सेम है दोनों में 1% और 1.5%, बट इन केस ऑफ 194Q ये जो डिसअलाउंस है ना, उसकी वजह से ही सबको टेंशन है कि 194Q लगा, में टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए कि नहीं. हमारे टीडीएस के प्रोविजन में हम टैक्स ऑडिट में भी देखते हैं कि कितने पे टीडीएस डिडक्ट होना था और कितने पे नहीं हुआ, कितना, और उसको हमें कंप्यूटेशन में हम उसके 30% को वी हैव टू डिसअलाउ. तो लाइक इफ आई परचेज फॉर 2 crores rupees, okay, and on 2 crores I had not made the TDS, I had not deducted TDS under section 194Q, तो उसका 30% मतलब 60 lakhs rupees. ओके, अभी आप सोचो यदि मेरे वो 60 लाख मुझे कंप्यूटेशन बैक हुए तो मेरा टैक्स का क्या इम्प्लीकेशन है. इन माय ओपिनियन आपको 194Q में टीडीएस काट लेना चाहिए, कि अपने खुद के पॉकेट से टैक्स भरने की बजाय यदि हम काट लें टीडीएस, वो ज्यादा बेटर है. नाउ इसमें बहुत सारे थोड़े कंफ्यूजन थे 194Q के लिए, एंड दैट कंफ्यूजन इज क्लियरिफाइड बाय द गवर्नमेंट वाइड सर्कुलर नंबर 13 of 2021 dated 30th June 2021. So in this circular 13, they had given some guidelines. I had taken some important guidelines in that. That one guideline is there, applicable on transaction to various exchange. अभी मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि यदि मैंने परचेज किया, my turnover for the last year, financial year 2021, is more than 10 crores. Okay, and for this year I am buying the is 1 to deduct TDS under section 1 से चैट बॉक्स में भी लिख के डाल सकते हैं. If I am my turnover was more than 10 crore in previous financial year, means financial year 2021, and I am buying shares of a private limited company for rupees 1 crore, whether I under section 94Q. सुरेश जी बताइए. मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, बट मैं डायरेक्ट टैक्स का आदमी नहीं हूँ. I deal in indirect tax more. So I don't know, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा. Let Ghanshyam and all tell. Yeah, Ghanshyam ji, please go ahead. कोई भी तो है ही नहीं वो.
प्रशांत, प्रशांत जी बताएंगे आप मैडम की क्वेरी को आंसर? Actually, I was on a phone, so I had not heard Sir, the actual. available She will repeat it हो for you जाएगा। once. Yeah, ma'am, please. पिंकी मैम जरा रिपीट करेंगे क्वेश्चन उनके लिए? Pinky ma'am, Prashant ji wanted the question again. What question you had asked? I am my turnover was more than 10 in previous financial year. Private limited company for rupees 1 crore. Then were able to deduct TDS. Whether I am liable to deduct TDS under section 194Q if I am buying shares of a private limited company for rupees 1 crore. I am doubtful. Actually, I am confused. Yes. Actually ये इसीलिए इस कंफ्यूजन के लिए ही गाइडलाइन निकाली ने, बट उस गाइडलाइन से हम और ज्यादा कंफ्यूज हो गए। आई एम रीडिंग दिस द लाइन what they had written in this guideline. It has been represented that there are practical difficulties in implementing the provision of TDS contained in section 194Q of the Act in case of certain exchange and clearing corporation. It has been stated that sometime in this transaction there is no one-to-one contract between the buyer and the seller. In order to remove such difficulty, it is provided that the provision of section 194Q of the Act shall not be applicable. They had made this clarification in this guideline. It will not be applicable according to you. नहीं, इसके हिसाब से तो हो जाएगा सर। इनके कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने किस लिए एग्जाम किया? यदि मैं स्टॉक एक्सचेंज या क्लियरिंग हाउस के थ्रू इफ आई एम डीलिंग, then I don't know who is the seller. So how I will deduct TDS? So that's why they are exempting. But if I know the seller, then if they are specifically they are excluding something for some reason, if that reason is not fulfilling, that means that in that case this section will be applicable. Okay. यदि आप ऐसे लिटरल मीनिंग से जाओगे कि यदि बायर और सेलर एक दूसरे को नहीं जानते, इसके लिए इन्होंने 194Q नहीं डिडक्ट करने बोला है, नॉट एप्लीकेबल बोला है। तो यदि बायर और सेलर एक दूसरे को जानते हैं तो इसका मतलब बायर सेलर एक दूसरे को जानते हैं तो 194Q एप्लीकेबल हो जाएगा ना। अभी आप सोचिए बाईबैक ऑफ शेयर्स में क्या होगा। कंपनी अभी सब बाईबैक कर रहे हैं क्योंकि डिविडेंड टैक्सेबल, डिविडेंड ज्यादा टैक्सेबल हो जाता है, ज्यादा टैक्स भरना पड़ता है डिविडेंड के केस में। एंड इफ दे वांट टू विथड्रॉ द रिजर्व दे हैव दिस ऑप्शन ओनली कि बाईबैक करना है। इन केस ऑफ बाईबैक क्या होगा? They know the shareholder. Yeah, they know the shareholder and the buyback का हमेशा अमाउंट ज्यादा ही होता है 50 लाख से। छोटे अमाउंट के लिए तो कोई बाईबैक करने जाएगा नहीं। Then also this section will be applicable. Yeah. क्योंकि जिस रीजन से इन्होंने स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया है, यदि उन्होंने ये कहा होता कि शेयर एंड सिक्योरिटी इज नॉट अ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ 194Q, देन ये बाईबैक भी निकल जाता और प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट में हम शेयर प्राइवेट कंपनी का खरीदें तो वो भी निकल जाता। बट जब रीजन इन्होंने बायर शेयर का अननोन, एक दूसरे से अननोन का वो रीजन दिया है, दैट मींस कि एनी अदर केसेस इन माय ओपिनियन 194Q विल बी एप्लीकेबल। मे बी इसके लिए आगे प्रॉब्लम या थोड़ी लिटिगेशन हो सकती है। ठीक है? So in your opinion, it is applicable. Yeah, she's saying applicable. Yeah. Okay. दूसरा उन्होंने दिया गाइडलाइन में बताया कि कैलकुलेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022
So 21-22 का जो हमें threshold 50 lakhs we have to calculate from 1st April 2021, not from 1st July. This act is applicable from 1st July 2021, but for threshold of 50 lakh rupees, we have to calculate the purchase amount with purchase transaction from 1st April 2021. Third, they had given the adjustment of GST and purchase return. Like if I have purchased something and the amount is of rupees 1 lakh, GST is 18% on that goods, so it become 1 crore 18 lakhs. So TDS on which amount we have to deduct, on 1 crore or 1 crore 18 lakhs. So I think there is a thumb rule कि अपने को जो हम हमेशा दूसरे सेक्शन में भी करते हैं, without GST जो अमाउंट रहता है, we have to deduct TDS on that. So on that 1 crore TDS to be deducted, और वही इन्होंने इसमें गाइडलाइन में क्लियर किया है. But for purchase return में उन्होंने एक प्रॉब्लम क्रिएट करी है कि परचेज रिटर्न हम तभी 194 क्यू हम तब कब बुक करते हैं कि जब हम परचेज रिटर्न के पहले ही बुक करते हैं 194 क्यू की डिटेल, क्योंकि जब हम परचेज डालेंगे उसी समय वी हैव टू क्रेडिट और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर. सो व्हेनेवर वी बुक द परचेज एट दैट टाइम 194 क्यू टीडीएस आ जाता है. सो हमेशा परचेज रिटर्न के पहले 194 क्यू रहेगा. तो वो क्या बोल रहे हैं कि बिफोर इफ द परचेज रिटर्न हैपन before the tax must have already been deducted under section 194Q of the act on that purchase. If that is the case, and again this purchase return, the money is refunded by the seller. ठीक है, मैंने purchase return किया और seller ने मुझे वो रुपए ही वापस कर दिए. In that case, this tax deducted may be adjusted against the next purchase against the same seller. अभी ये कितना बड़ा इम्प्लीकेशन आएगा इसका. आप ये हमने सिर्फ ये एक लाइन पढ़ रही है, फिर से मैं आपको पढ़ती हूँ, आप समझिए इस लाइन का मीनिंग कि दिस टैक्स डिडक्टेड मे बी एडजस्टेड अगेंस्ट द नेक्स्ट परचेज अगेंस्ट द सेम सेलर. अभी मुझे उससे कुछ पूरे साल में कुछ मैंने परचेज ही नहीं किया बाद में, देन हाउ आई विल एडजस्ट दैट, बिकॉज दे आर सेइंग दैट मैं उस सेम सेलर से ही परचेज करूंगी, उसी में ही वो टीडीएस का अमाउंट एडजस्ट कर सकती हूँ यदि उसने मनी में पैसे दिए. यदि मैंने उस परचेज रिटर्न को उसने फिर से गुड से यदि चेंज कर दिया, दूसरा उसने सामान भेज दिया, इन दैट केस कुछ भी नहीं करना है क्योंकि वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है गुड्स की डिलीवरी होने के बाद में. बट इन केस उसने मुझे पैसे वापस कर दिए कि भैया मेरे पास तो यही माल है, आप नहीं ले रहे हो तो पैसे वापस ले लो, इन दैट केस वो इन्होंने ये कंडीशन लगा दी कि आप सेम सेलर से ही आप एडजस्ट कर सकते हो, दूसरे किसी से एडजस्ट नहीं कर सकते हो. तो इसमें क्या होगा, अभी 26 एस में सेलर के 26 एस में उसका कितनी सेल दिखेगी, उसकी फाइनेंशियल से उसकी 26 एस की सेल मैच ही नहीं होगी, फिर ये लिटिगेशन का मामला आ जाएगा. सेलर जिद करेगा कि भैया मेरे उसमें से हटाओ 26 एस से, आपकी रिटर्न करेक्ट कर दो, रिवाइज करो, बट इन्होंने तो वो दिया ही नहीं है इसमें कि रिटर्न रिवाइज करके हम उसको दूसरे के साथ एडजस्ट कर सकें. आप यदि ये सोचते भी हैं कि मैं दूसरे सेलर से जब परचेज करूंगा तो हो सकता उससे का जो काटना है टीडीएस उसके साथ मैं एडजस्ट कर दूं, तो ये तो इन्होंने प्रोविजन ही नहीं दिया, आपको तो सेम पर्सन से ही एडजस्ट करना है. तो साथ में इन्होंने ये भी नहीं दिया कि उस टीडीएस को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कि नहीं आगे. तो ये गाइडलाइन क्लेरिफिकेशन के लिए है कि और कॉम्प्लिकेशन के लिए है, आई डोंट नो. अभी तो और कॉम्प्लिकेटेड ही दिख रही है. That's why I'm saying. फिर whether non-resident can be buyer, no. तो वो मैंने पहले ही बताया था कि रेसिडेंट के लिए ही एप्लीकेबल है ये. Whether tax to be deducted when the seller is a person whose income is exempt. ठीक है, तो in that case they are saying कि if the person have only exempt income under section 10 or under any other act passed by the parliament like RBI Act or ADB Act, then this 194Q section will not be applicable. Okay, but उसकी पूरी इनकम एग्जेम्प्ट इनकम ही होनी चाहिए और इसी सेक्शन में ही होनी चाहिए. इसके अलावा उसकी यदि डिविडेंड इनकम भी है या कोई कैपिटल गेन इनकम एग्जेम्प्ट इनकम है तो भी ये सेक्शन उसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा. ठीक है, देन वन क्लेरिफिकेशन की कोई भी एक ट्रांजैक्शन में, हाँ ये 194Q इन केस ऑफ फर्स्ट इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन,
ये भी सबको था कि इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैसे करेंगे, 10 करोड़ का टर्नओवर तो लास्ट ईयर का देखना है, फर्स्ट ईयर है तो हाउ, देन द क्लेरिफिकेशन केम कि फॉर फर्स्ट ईयर 194Q विल नॉट बी एप्लीकेबल क्योंकि वी कांट सी द टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर. लास्ट वन इज मोर इम्पोर्टेंट कि क्रॉस एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 194O सबसेक्शन 1H ऑफ सेक्शन 260 एंड सेक्शन 194Q. ये कई सारे बहुत सारे ट्रांजेक्शन you will find that 194O is also applicable and 261H is also applicable. So in that case, which section TDS will be on which section, whether we have to deduct TDS or whether we have to collect TCS. So in case if the in one transaction 194O and 261H both are applicable, in that case what they are saying that the primary responsibility is on e-commerce operator to deduct the TDS under section 194O of the act. Okay, उसके लिए reason क्या दिया है कि because the rate of TDS under section 194O is higher than the rate of TCS under section 1H of section 261H. So 194O की रेट ज्यादा है, इसके लिए आपको 194O में TDS काटना है, 261H में TCS नहीं कलेक्ट करना है. ओके, तो गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू पहले देखता है एक्चुअली. एंड इफ इन अ सेक्शन in a transaction both 194O and 194Q is applicable, then also in that case 194O is applicable to be deducted, but क्योंकि again 194Q और 194O में 194O की रेट ज्यादा है, तो उसमें भी आपको 194O में ही TDS डिडक्ट करना है, 194Q में नहीं करना है. हाँ, अभी जो अपना जो मेन इश्यू आता है मुद्दा कि 261H और 194Q both are applicable in one transaction, then क्या करना है. अभी इसमें इन्होंने एक और कॉम्प्लिकेशन ला दी है. इसमें सेक्शन में इन्होंने लिखा कि if 261H में TCS डिडक्ट हुआ है, then also 194Q is applicable. Okay, but in this clarification what they are writing, however, if for any reason tax has been collected by the seller under section 1H of section 206C of the Act before the buyer could deduct tax under section 194Q of the Act on the same transaction, such transaction would not be subjected to tax deduction again by the buyer. So इस clarification में they are saying if TCS has already been collected under section 206C1H, then the liability under section 194QP is not arise. तो अब ये गाइडलाइन प्रिवेल करेगी कि वो सेक्शन प्रिवेल करेगा, क्योंकि सेक्शन में क्लियरली लिखा है कि इवन इफ 206C1H इज देयर, देन आल्सो यू हैव टू डिडक्ट TDS अंडर सेक्शन 194Q. ओके, बट इसमें जो दिया है, इन माय ओपिनियन दे हैड गिवन दैट इफ फॉर एनी रीजन, मुझे लगता है कि ये जो 1 जुलाई से जो एप्लीकेबल हो रहा है 194Q, तो इट मे कैन बी हैपन कि 1 जुलाई के पहले उस ट्रांजैक्शन के ऊपर 206C1H हो चुका होगा. फॉर आई थिंक फॉर दैट पर्पस दे हैड इंसर्टेड दिस लाइन कि उसके ऊपर पहले से यदि होके रखा है देन 194Q नहीं करना है, क्योंकि ये 194Q के एग्जिस्टेंस में आने के पहले वाले ट्रांजैक्शन के लिए बोल रहे हैं. बट वो इन्होंने यहाँ पर ऐसे क्लियर नहीं किया है. इन्होंने लिखा if however if for any reason, तो अभी इसमें लोगों को अभी भी वही फिर कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई मैंने तो TCS काट दिया है, TCS कलेक्ट कर लिया, तुम अगेन फिर तुम TDS क्यों काट रहे हो. बट इन माय ओपिनियन जो 194Q आने के पहले, एग्जिस्टेंस में आने के पहले के जो ट्रांजेक्शन है, ये उनके लिए क्लेरिफिकेशन है कि यदि उस ट्रांजेक्शन के ऊपर ऑलरेडी 261H में TCS कलेक्ट हो गया है, देन 194Q is not applicable on that amount. Okay, तो दैट ये क्लियर. बट इस गाइडलाइन के ऊपर जाएंगे तो ये थोड़ा लिटिगेशन का मामला आगे भी हो सकता है कि वो है. नाउ दिस इज द चार्ट फॉर 2021 आई एम गिविंग कि अभी हम 2021 की ऑडिट कर रहे हैं एंड वी कैन प्रोवाइड दिस चार्ट टू आवर ऑडिट स्टाफ दैट प्लीज सी इफ द ट्रांजैक्शन इज फॉलिंग इन एनी ऑफ दिस केसेस, then whether 206C1H will be applicable or not, because we have to give in our tax audit report whether they had collected TCS or not in time. So in this case on 2021 194Q was not there at that time. So and
So in buyer turnover, I had written not applicable. In seller turnover, it is more than 10 crore every time I had taken. कि सेलर का टर्नओवर 1920 का हमेशा ज्यादा ही रहा. So if the sale of goods is 70 lakhs, sorry, if the sale of good is 70 lakhs and receipt before 30 September, इसमें ना मुझे सबका आंसर चाहिएगा तो ही थोड़ा मजा आएगा, अदरवाइज नहीं मजा आएगा उतना कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें. तो sale of goods is 70 lakhs and receipt of sale is 55 lakhs before 30 September and after 30 September it is 45 lakhs only. So we tax should be collected on 45 lakh only, because we will calculate 50 lakh turnover from 1st April. So from 1st April 30th September to till 30th September, it become 55 lakhs. Just a second. So it become 55 lakhs. So this 261 is applicable to him. But after 1st October, he has received only 45 lakh rupees. That's why TCS should be collected on only 45 lakh rupees. Okay, so we are not seeing sale of good. Sale of good is 70 lakh rupees, but we are not concerned about sale of good. We have to see only receipt for sale. Okay, so and he has provided his PAN number. That's why the rate is 0.075%. 25% concession was given by the government due to COVID. In second case, sale of good is 55 lakhs. So ये केस बहुत आपको मिलेंगे, लोग उसी के बेसिस पे जाएंगे कि अरे 55 लाख से ऊपर की तो सेल है, but his receipt is less than 50 lakhs rupees. So he is not liable for TCS. भले ही उसकी सेल उसकी 50 लाख से ऊपर जा रही है, but his receipt is less than 50 lakhs, so 261H will not be applicable to him. Don't go by sale figure. In third case, sale is 60 lakhs and he has received 80 lakhs before 30 September. After 30 September, he has not received anything. Then also TCS should not be there because it ऐसे 50 लाख से ऊपर गया, but after 30 September उसकी कोई सेल नहीं है और हमें जो TCS कलेक्ट करना है उसे जो मतलब सेल नहीं, सॉरी सेल्स कुछ भी उसने रिसीव नहीं किया, तो उसे जो TCS कलेक्ट करना था 1 अक्टूबर के बाद जो उसने रिसीव किया उसी पे ही करना था. So it will nil. In fourth case, sale of good is 75 lakhs and he has received all the money after 30 September only. So in this case, 75 lakhs minus 50 lakhs threshold limit, so on 25 lakhs, he has to collect the TCS. In fifth number, his sale is 80 lakhs and he is received on again 75 lakhs. So he has to collect tax on 25 lakhs. But what the difference between 4 and 5? That in 4 number example, he has given his PAN number, seller has given his PAN number, buyer is given his PAN number, but in 5th number, buyer is not given his PAN number. So rate is higher. Okay. In 6th number example, sale of good is 90 lakhs, receipt is 40 lakhs before 30 September and after 30 September it is 70 lakhs. So tax will be collected on 60 lakhs. Sales consideration is 60 lakhs because 40 lakhs before 30 September he has received and after 30 September he has received 70 lakhs. So 40 and plus 10, 15 lakhs exemption we have to deduct. So only 60 lakhs he has to collect the TCS. In last example, he has received 55 lakhs before 30 September. ये 7th नंबर एग्जांपल और फर्स्ट नंबर आपको सेम लग रहा होगा, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि इन फर्स्ट नंबर एग्जांपल सेल ऑफ गुड इज 70 lakhs, so it's big more than 50 lakhs, but in 7th example I had given that sale is less than 50 lakhs. ये ट्रांजेक्शन भी अपने को बहुत मिलेंगे जो हम मिले मतलब ढूंढ ही नहीं पाएंगे. We will all are going through sales figure only, but we don't have to see the sale figure, we have to see the sales consideration. Okay, so मे भी हो सकता है कि हमारा ऑडिट स्टाफ जो भी जा रहे हैं या ऑडिट कर रहे हैं जो कि 45 लाख की तो सेल है तो 261H अप्लीकेबल नहीं होगा. दिस इज नॉट द केस. He can be received the for previous year outstanding, he can receive the advance for next year. So
receipt can be more than 50 lakhs. Even if sale is zero, then also sale receipt can be more than 50 lakhs. So we should see the data in data, whatever the amount received by from the we have to see the this thing कि उसका कितना उसने receive कितना किया, data से कितने receive हैं उसको amount. On that amount we have to check the 261H has been collected on, not on the sale portion. Now in section, now for the financial year 21-22, this is more complicated one क्योंकि दोनों section applicable हो गए. तो इसमें क्या होता है कि अब मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया है कि इन फर्स्ट एग्जांपल both the section is not applicable because buyer and seller both have turnover less than 10 crore. So that's why 261H is also not applicable and 194Q is also not applicable. In second case, buyer's turnover is more than 10 crores. So 194Q will be applicable. Seller turnover is less than 10 crore. That's why 261H will not be applicable on that. Okay. So then if 194Q is applicable, then we have to see only sale part. We don't have to see this receipt part. So if we will see the sale part, see why we had taken 30 June because this 194Q is applicable from 1st July. That's why we had segregated both the things, sale of good or receipt of goods. So if you had seen the sale of goods before 30 June, it is 40 lakhs and after 30 June, it is 50 lakhs. So it becomes 90 lakhs and 50 lakhs is our exempted limit. So on 40 lakhs, 194Q will be applicable. In third number example, seller turnover is more than 10 crore and buyer is less than 10 crore. In this case, 194Q is not applicable, only 261H is applicable. So we will not see sale of goods, we will see only receipt for sale. Okay, so if we will see receipt for sale, then before 30 June, it is 54 lakhs. Less threshold limit of 50 lakhs on 57 lakhs. Receipt is 57 lakhs. So less 50 lakh on 7 lakh TCS should be collected. In fourth number example, अभी तक क्या तो दोनों की टर्नओवर नहीं थी, तो दोनों ही सेक्शन नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी. In second and third also कभी बायर की टर्नओवर नहीं थी, कभी सेलर की नहीं थी, then भी टेंशन नहीं था कि चलो एक ही सेक्शन है. But if both the turnover seller and buyer both have turnover more than 10 crore. Okay, in that case, both the section is applicable. Now, what will be the TDS and TCS? So, सबसे पहले हम देखने जाएंगे कि 30 जून के पहले 1 अप्रैल से, क्योंकि 261H is applicable from 1 अप्रैल, तो पिछले साल से ही applicable है, तो 1 अप्रैल से 30 जून तक भी 261H in existence में था. So, we will see that before 30 June, whatever amount he has received. Okay, so he has received 60 lakhs before 30 June. So TCS will be collected on 10 lakh rupees, 60 lakhs minus 50 lakhs. On 10 lakhs, TCS should be collected by the seller. Now, when the 194Q come into picture after 30 June, then we will see only sale part first. We will not go by the receipt part. We will go sale of the purchase of the buyer. Okay. So purchase of the buyer, when we will go to calculate threshold limit, he purchased 40 lakhs before 30 June and after 30 June he had purchased for 50 lakhs. It become 90 lakhs. So what will be the amount on which TDS should be deducted, whether it is 40 lakhs or 30 lakhs? Both the figure has been given. Can anyone say which one will be correct? 40 lakhs or 30 lakhs? On which amount TDS? 40 lakh. 40 lakhs. 40 lakhs. 90 minus 50. Sorry? 90 minus 50. 30? 40 lakhs. 40 lakhs. 40 lakhs. सबका आंसर 40 lakhs है ना? Yes, 40. Yes. But गलत है, सही है. but after that circular, the scenario has been changed. क्योंकि वो यदि वो उसने जो रिसीव किया है
30 जून के पहले जो उसने रिसीव किया है उसी के ऊपर में 10 लाख जो टीसीएस कटा हुआ है, if that 10 lakh is pertaining to these transactions, Yes. okay, in that case TDS will be deducted on 30 lakh, क्योंकि उसने क्या कहा है सर्कुलर में, गाइडलाइन में क्या बोला है, if TCS has been deducted on that transaction then 194Q will not be deducted. Okay, तो each and every transaction का डिको करना पड़ेगा कि एक जो हमारे जो परचेज है वो पूरी कंप्लीट होने के लिए उसने कब पेमेंट किया, उसके ऊपर 261H हुआ कि नहीं हुआ. तो लाइक बहुत सारी कंपनियों में करंट अकाउंट जैसे चलते रहते हैं, डेटर्स क्रेडिटर्स के अकाउंट, ओके, और उसमें वो बिल टू बिल मैच नहीं करते वो लोग. तो इन दैट केस इट विल बी डिफिकल्ट टू फाइंड कि उसके ऊपर 261H उसी बिल के अगेंस्ट में कटा हुआ है कि दूसरे बिल के अगेंस्ट में 261H कटा हुआ है. तो इन माय ओपिनियन इट्स बेटर टू डिडक्ट TDS ऑन 40 लाख रुपीज इन दिस केस. यदि उसमें क्लियरिटी नहीं है कि बिल टू बिल कोई क्लियरिटी नहीं है कि किसके वो 10 लाख किसका है, वो 10 लाख किसका है, तो बेटर टू डिडक्ट TDS ऑन 40 लाख रुपीज. अदरवाइज आस्क हिम कि भाई आपने कौन से बिल के अगेंस्ट में काटा है, आप मुझे बताओ. ओके, इन 5th नंबर ट्रांजैक्शन. Ma'am, I have a query in this 4th number. Yeah, Prashna ji, पूछिए. Ma'am, in practical experience in the gold market, the people are not allowing to deduct TDS. Instead, they are collecting the TCS. And what the argument they are giving is, since we are collecting the TCS, you don't have to deduct the TDS. Even though the liability, as per technical guidance, it is the TDS that has to be deducted. Yes. But in the overall, the wholesale market, the bullion, who are the bullion dealers, they are not allowing to deduct a single rupee of TDS. Yes, I know that. In government organization also they are charging TCS on their invoices only. Yeah. So what should be the correct interpretation, Miss? Correct interpretation is you have to deduct TDS under section 194Q. But in case they are not allowing to deduct, so what is the way out for the client? You have to bear that 1.1% from your pocket. आपका यदि वो पूरा का पूरा That goes a very big amount, ma'am. नहीं, आप सर मेरा एक चीज समझिए, यदि आपका पूरा परचेज आपके इनकम में ऐड हो जाएगा 30% and you have to pay income tax on that amount, तो दोनों का आप कंपेयर करोगे तो it is better to bear 0.1% TDS from your own pocket. Okay. Yeah. Got it. Yeah, so suggestion is क्योंकि बुलियन का भी जो भी है आप बाई करोगे तो वो छोटा मोटा अमाउंट तो नहीं रहेगा ना सर. It is a big amount, around say 25 crores, 30 crores, 50 crores and उसका annually. 30% आपकी इनकम में ऐड करवा लोगे तो कितने की इनकम टैक्स लायबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी. Correct. So 1.1% is better. Yeah, 0.1% is better na. Yeah. If he is not agree. Ma'am, I am agreeing, but the clients are not agreeing to that point. No, that I am saying if he is not agree, that I am saying if he is not agree, ask him to bear from his own pocket. हमारे अभी भी कई केसेस में ऐसा होता है कि सैलरीड पर्सन है, मेरा एक बीपीओ क्लाइंट है, मैं शेयर करती हूँ आपसे. बीपीओ क्लाइंट है, उसके यहाँ पर उन लोगों ने एआई का बिजनेस नया स्टार्ट किया है. वहां उसने वो जो बोलते हैं साइंटिस्ट वगैरह रखे हैं. and now that scientist is saying we are not bearing TDS. आप मेरे को फुल इतना अमाउंट मुझे चाहिए ही. अभी हमें तो TDS काटना है तो हमें बैक कैलकुलेशन करके वो TDS हम कंपनी के अकाउंट में भरते हैं. Okay. तो वो कंपनी की C2C बढ़ रही है. Okay. तो लाइक दैट आपको ये करना, मतलब मैंने पूछा भी डायरेक्टर से, तो डायरेक्टर बोला पिंकी छोड़ दे, मैं यही समझ के चल रहा हूँ कि ये बंदा इतने अमाउंट का है. मतलब जो उसको मैं दे रहा हूँ प्लस मेरा TDS. This is my cost to him only. Okay. That's a better logic actually. Yeah. Better paying. Yeah. वही बेटर 0.1% इज बेटर ना. Of हम course, पूरा always. ऐड करें उससे बेटर. नहीं, always. Yeah. मेरे केस में तो मैं बता रही 10% हम डिडक्ट कर रहे हैं, वो कंपनी अपने पॉकेट से भर रही है. So that's the thing. So 5th number में both the turnover is less than 10 crores, so both the section will not be applicable. In 6th, buyer's turnover is more than 10 crores, so we will not see receipt part, we will see only sale part. And again on 40 lakhs, on 50 lakhs means
ऑन 90 lakhs तो 40 lakhs के ऊपर में 194Q डिडक्ट होगा. In case of 7, sailor turnover is more, so 194Q is not applicable. 206C1H is applicable. So we will not see sale part, we will see only consideration part. In sales consideration, total amount is 57, but only 7 के ऊपर कटेगा, क्योंकि क्यों सिर्फ 7 के ऊपर आएगा, क्योंकि वो 57 है और 7 के तो 50 माइनस करके 7 के ऊपर आएगा. In 8 number, again 261H is applicable. We will see only receipt part, we will not see sale part. In this, they have to collect TCS on 30 lakhs because 1st April से तो applicable था ही ना 261H. तो इसमें कोई वैसा कंसेशन नहीं होगा कि हम 20 लाख के ऊपर लगाएंगे 30 जून के बाद वाले पे, तो उस पे पूरे 30 लाख पे ही लग जाएगा TCS. In 9 number, both the section is again applicable. So from till 30 June, we will see only receipt portion. In receipt portion is 50 lakhs only. So 261H किस लिए नहीं हुआ, आपको समझ में आया ना ये इसमें, क्योंकि 50 लाख तो एग्जाम में चला जाएगा, तो टैक्स TCS काटने के लिए कोई भी अमाउंट हमारे पास नहीं बच रहा है इसमें. आफ्टर 30 जून we will check sale of goods. So in sale of goods 40 lakhs and 50 lakhs, 90 lakhs, तो 40 lakhs के ऊपर 194Q आएगा. On 10 number, again both the section is applicable. We will see before 30 June the seller has received only 20 lakhs, so that's why TCS is not there. After 1st July, total sale become 1 crore for buyer, purchase is for more than 150 lakhs for buyer. So on 30 lakhs 194Q will come. Why? Because for threshold purpose we will take the figure from 1st April, but for TDS we will take the amount purchase after 1st July only. So after 1st July he has purchased only 30 lakhs, so TDS will be on only 30 lakhs on figure. Not on 50 lakhs. Sorry? Not on 50 lakhs. Yeah, not on 50 lakhs. Because TDS will be on transaction occur after 1st July. Okay. On 11, both the section is applicable, but sale is 0. जो मैंने आपको बताया ना कि सेल पार्ट आपका 0 रहेगा, तो आप लोग को निकल जाएंगे कि भाई इसमें तो TDS लगना ही नहीं, 261H नहीं होना है. ऐसा नहीं है, because his receipt is more than 80 crore, 80 lakhs, more than 50 lakhs. Maybe he has received for the previous year outstanding, maybe he has received for advance for next year. So 206C1H will be applicable on that amount. On last part, last example, 15, both the section is applicable. So on sale of goods, we will see first, इसमें भी वही जो हमने fourth में देखा ना, fourth example में same वही हमें इसमें भी देखना पड़ेगा, क्योंकि till 30 June, he has received 65 lakhs. So on 15 lakh 206C1H will be applicable. After that, we will go see sale of goods. Sale of good is 1 crore. Okay, so हम ऊपर वाले एग्जाम्पल 10 नंबर एग्जाम्पल के हिसाब से जाएंगे तो 30 lakhs के ऊपर 194Q आ रहा है, करेक्ट. बट यदि ये 15 lakhs रुपीज जिस पे TCS डिडक्ट हुआ है, उस पे ऑलरेडी उस इसी ट्रांजेक्शन से ही परटेन करता है, तो दैट अमाउंट कैन बी रिड्यूस. बट फॉर दैट पूरा आपको रिको और बिल टू बिल आपकी डिटेल होनी चाहिए बुक्स में, या बिल टू बिल आप मैच कर पाओ. हाँ, तो इसमें 206C1H आएगा. यस यस. मैं ये चीज समझाना चाहती हूँ ना सर कि हमेशा आपका ये अभी जो ट्रांजेक्शनल प्रोविजन है ना, उसकी वजह से 206C1H पहले आ रहा है. अदरवाइज यदि आप प्रैक्टिकली सोचोगे ना, कोई भी ट्रांजेक्शन में 206C1H पहले आ ही नहीं सकता है. करेक्ट. बिकॉज़ ये मिड जो अपना जुलाई से चालू हुआ अपना, इसके लिए नहीं नहीं, वो चीज नहीं है सर. उसमें क्या है सुरेश जी कि TDS का थंब रूल क्या है, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. ठीक है. और 206C1H का क्या रूल है, whenever he received the payment, whenever he received the amount, then the TCS will be applicable. तो आज यदि मैं आपसे कुछ भी परचेज करूंगी, ठीक है, मुझे अभी अगस्त चल रहा है, मैं बोलूंगी मुझे सितंबर में इनवॉइस चाहिए, मैंने आज आपको 1 करोड़ रुपए एडवांस दिए, ठीक है. यदि मैं जब 1 करोड़ रुपए आपको एडवांस देती हूँ, तो मैं जब एडवांस दूंगी उसी से मैं 194Q काट के आपको दूंगी.
Correct. करेक्ट, आपको तो बाद में मिलेगा ना मेरे देने के बाद। Correct. करेक्ट, फिर उसके बाद जब आप सितंबर में आप इनवॉइस इशू करोगे तो उस समय तो ऑलरेडी उसके ऊपर टीसीएस मैंने टीडीएस काटा हुआ ही है, तो टीसीएस की आपकी लायबिलिटी नहीं आएगी। Agreed. ठीक है, ये हुआ एडवांस के केस में। यदि मैंने एडवांस नहीं दिया, डायरेक्ट आपसे परचेज किया, ठीक है, मैं डायरेक्ट भी आपसे परचेज करती हूँ, आपको रिसीट के टाइम टीसीएस काटना है और मुझे क्रेडिट के टाइम भी काटना है टीडीएस। तो जैसे मैं उस परचेज बिल की मेरे यहाँ पर एंट्री करूंगी, एट दैट मोमेंट आई हैव टू डिडक्ट टीडीएस ऑन 194 की, क्योंकि आपको सेल के टाइम नहीं काटना है, आपको रिसीट के टाइम पे काटना है। तो मैं 194 क्यू में एंट्री करूंगी, तो समय मैं टीडीएस काट के एंट्री करूंगी, और जब मैं आपको पेमेंट करूंगी तो अकॉर्डिंगली जो बैलेंस अमाउंट रहेगा वो मैं आपको पेमेंट करूंगी। तो आपके टीडीएस ऑलरेडी पहले कटा हुआ रहेगा, तो 261 आएगा ही नहीं उस पर। तो यदि ये चीज आपने ये कंसेप्ट दिमाग में हमेशा रखें कि टीडीएस क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और 261 is ओनली ऑन रिसीट। तो कोई भी ट्रांजैक्शन में ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। एक्चुअली ये इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है कि गलत प्रैक्टिस चल रही है, जो अभी इन्होंने भी बताया कि वो उसमें लगा के ही दे रहे हैं टीसीएस, और उसके लिए उनको भी प्रॉब्लम है सुरेश जी। आज उन्होंने सपोज यदि अप्रैल में बिल बनाया हुआ है, ठीक है, अप्रैल या अभी जो बिल बना रहे हैं वो, तो आज भी यदि बिल बनाए तो उनकी 7 सितंबर को लायबिलिटी आ जाती है टीसीएस पेमेंट करने की, ठीक है, और उनको हमने पैसे तो दिए ही नहीं, उनको पैसे मिले बिना उन्हें टीसीएस भरना पड़ रहा है खुद की पॉकेट से, और जबकि ये बोलता है कि जब पैसे मिले तो भरो, तो खुद से अपनी लायबिलिटी और अपने ऊपर ले रहे हैं और उस पर इंटरेस्ट भर रहे हैं। अभी कई सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं कि जिसपे मार्च के पहले वाले में वो अभी रिटर्न वे लोग भर रहे हैं, उसमें ये केसेस आ रहे हैं, वे लोग इनकम टैक्स वो टीडीएस डिपार्टमेंट से केसेस आने स्टार्ट हो गए कि भाई ये रिसीट तुम्हारी ये तुम्हारे बिल के, तुमने बिल, इसने उस समय बिल बनाया लेकिन बिल में उन लोगों ने टीसीएस लगा दिया, रिटर्न अभी भर रहे हैं। तो उस चीजों के ऊपर अभी काफी केसेस खुल रहे हैं। क्या और प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, क्योंकि जब उन्होंने इनवॉइस बनाई ना सर, प्रॉब्लम क्यों आ रही, पिछले साल कंसेशन था 0.25% का, 25% का कंसेशन था, तो उन लोगों ने बिल बुक कर लिए उस समय, और उस समय टीसीएस कम रेट पे लगाया। अभी जब वो रिटर्न भरी, जब उनको पैसे आए तब उन्होंने रिटर्न भरी, तो उन्होंने वो 0.75% के हिसाब से टीसीएस की रिटर्न भरी। तो नेचुरली वो उसके लिए उनको डिमांड आ जाएगी ना कि यू आर लायबल टू डिडक्ट टीडीएस, कलेक्ट टीसीएस इन मोर अमाउंट। यदि आप अप्रैल फर्स्ट क्वार्टर की जब रिटर्न भरोगे तो आपको तो कोई कंसेशन नहीं है उसमें, 0.1 आपको काटना था, आपने रिटर्न भरी 0.075 के हिसाब से, तो उतने की डिमांड भरो अभी। तो ये भी केसेस काफी खुल रहे हैं, क्योंकि टीडीएस डिपार्टमेंट को भी समझ में आ गया कि ये लूप होल है, तो वो बहुत सारे ये केसेस खुलने स्टार्ट किए उन लोगों ने ये। तो ये 194Q और 261H का क्लियर हो गया आप लोगों को। अभी हम थोड़ी देर ये ले लेते हैं 206AB जो दिखाना था मुझे। 206AB is new section and effective from 1st July 2021. In this section, what they are saying, if the person to whom you are paying is not filing his return of income in any of the assessment year preceding the 2 assessment year for which 139(1) due date under section 139(1) has not been expired, and the TDS amount for these 2 previous year is more than 50,000, then TDS should be on higher rate. TDS should be deducted on the higher rate. Okay. तो यदि उसने दोनों साल में, जैसे हम 2021 में यदि आज के दिन में पेमेंट करती हूँ, आई हैव टू सी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 एंड फाइनेंशियल ईयर 19-20, बिकॉज 2021 के भी डेट एक्सटेंड नहीं, एक्सपायर नहीं हुई है, एंड दोनों में से कोई एक साल की भी उसने रिटर्न भर दी है ना, देन ही विल गो आउट ऑफ द प्रीव्यू ऑफ 206AB. बट इफ हैज नॉट फाइल्ड फॉर एनी ऑफ द असेसमेंट ईयर, बट TDS is more than 50,000. More than 50,000 means total 50,000. ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझसे ही 50,000 का TDS टोटल पूरा मिला के 26 एज में यदि 50,000 से ऊपर है तो उसको TDS की मतलब इनकम टैक्स रिटर्न भरनी चाहिए थी। यदि उसने नहीं भरी, then TDS rate will be twice the rate or 5%, whichever is higher. So like if I am paying for any professional services, so rate will be 20% or 5%. So higher will be 20%, तो 20% काटना पड़ेगा.
ओके, बट इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पेंटर को कॉन्ट्रैक्ट में यदि मैं किसी नॉन इंडिविजुअल को पेमेंट कर रही हूँ, कोई कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट कर रही हूँ, देन टीडीएस रेट विल बी 2%, रेट विल बी 4% or 5%, and that this case 5% will be deducted. 206 AB is not applicable to non-resident who doesn't have P in India, क्योंकि उसको टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न भरने की यहाँ पर लाइबिलिटी ही नहीं आती है, तो उसके लिए वो ये एप्लीकेबल नहीं है. एंड व्हाट दे आर सेइंग कि 206 AA और 206 AB, even if any transaction 206 AB or AA both are applicable, then we have to calculate tax under both the section, and higher of the both the section will be applicable. कि दोनों में हमें निकाल के दोनों की में से क्या टैक्स रेट आती है, उन दोनों की में से भी जो हायर रहेगी, ऑन दैट रेट वी हैव टू डिडक्ट टीडीएस. मैडम नॉन रेसिडेंट का किसी का और कोई इनकम हुआ तो, रेंटल इनकम वगैरह कुछ हुआ यदि वो तो? इंडिया में यदि उसकी कोई इनकम नहीं है तो सर वो लायबल नहीं है ना यहाँ रिटर्न भरने के लिए. इंडिया में नॉन रेसिडेंट का इनकम हुआ, रेंटल का या किसी चीज का, तो लायबल हो गया ना, तो फिर भरना पड़ेगा, उसको एप्लीकेबल हो जाए, तो फिर एप्लीकेबल है. अभी मेरे केस में हमने देख रहे हैं ना कि जो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किए हुए, रेंट पे लगाई हुई है प्रॉपर्टी उनकी. तो हाँ, ये एक मैं बता दूं कि रेंट पे यदि प्रॉपर्टी लगी हुई है तो रेट बहुत हायर होता है, 30% प्लस सरचार्ज, करेक्ट, प्लस एजुकेशन सेस, तो ये बहुत हायर अमाउंट हो जाता है. और उस केस में रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को यदि आप रेंट पेमेंट कर रहे हो तो उसके लिए कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है. इवन इफ यू आर पेइंग 1000 पर मंथ, then also you have to deduct TDS on that amount. Correct. रेसिडेंट को पेमेंट करते हैं तो 2,40,000 की लिमिट है, बट नॉन रेसिडेंट को इफ यू आर पेइंग रेंट देन देयर इज नो एनी थ्रेशोल्ड लिमिट. अभी उसके लिए भी बहुत इंक्वायरीज स्क्रूटनी नोटिस आ रही है, because when you are paying rent to any non resident and they are asking your salary return, HRA में यदि 1 लाख से ऊपर अमाउंट रेंट का आता है तो आपको पैन नंबर देना पड़ता है. आप जैसे उसका पैन नंबर देते हो वैसे ही उन्हें पता चल जाता है कि आपने एनआरआई को पेमेंट किया है कि रेसिडेंट को पेमेंट किया है. करेक्ट. एंड दे आर सेंडिंग नोटिस अकॉर्डिंगली कि यू आर पेइंग टू नॉन रेसिडेंट मोर देन 1 लाख रुपीस, व्हाई यू हैव नॉट डिडक्टेड टीडीएस. तो एंड दिस 206 AB, उस केस में भी क्या नॉन रेसिडेंट अभी तक रिटर्न फाइल नहीं करते थे यहाँ पे. अभी आप वो देखोगे तो 30% प्लस उसके ऊपर यदि तो ये उसके केस में भी अभी हायर ऑफ द चीज जाएगा कि जो हायर है. नेचुरल. तो टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इफ द पेमेंट इज इन 192, 192A, 192B, 194BB एंड 194N. क्योंकि 194N के लिए अलग उन्होंने वो सेक्शन दिया है ना कि 194N इटसेल्फ इज अ सेक्शन की वो नहीं होगी रिटर्न 3 साल की तो टैक्स हायर रेट पे है. तो 194N के लिए भी ये 206C1 एप्लीकेबल नहीं है, 206A भी एप्लीकेबल नहीं है. ये एक सिंपल सा चार्ट बनाया है कि समझने के लिए कि इफ द पर्सन हैज फाइल्ड हिज बोथ द रिटर्न फॉर बोथ द असेसमेंट ईयर and his TDS is more than 50,000, he will not be a specified person and tax rate will not be high, TDS rate will not be high. If he is a specified person, then only TDS will be deducted at higher rate, otherwise TDS will not be deducted at higher rate. In second example, he has filed his return of income for 1920. So 1 साल की उसने रिटर्न फाइल कर दिया तो बाकी का हमें कुछ देखना ही नहीं है, he will not be a specified person. In third case also he has filed assessment year for 2021. Then again he has filed for 1 year, तो उसको नहीं देखना है. अभी मेरे पास में 2 दिन पहले क्वेरी आई कि मैडम उसने 2 साल की तो रिटर्न फाइल नहीं करी थी, लेकिन असेसमेंट ईयर 21 की रिटर्न उसने फाइल कर दी. मैंने पहले पूछा, पहले तो उसको बोलो भगवान को प्रसाद चढ़ाएगा कि 21 की रिटर्न कैसे फाइल कर दी उसने. हम लोग की तो साइट ही नहीं खुल रही, रिटर्न अपलोड नहीं हो रही थी. बोला मैडम उसने 21 की, क्योंकि 20 की फाइल नहीं कर सकते रिटर्न, so he has filed for 21. So now he is asking me to not to deduct TDS at higher rate. So what should I do? तो मैंने उसको कहा भैया 21 की रिटर्न के लिए क्या तो तू अभी उसको पेमेंट ही मत कर और उसको बिल भी बनाने मत बोल. तो 139(1) की डेट जाने दे आगे. 139 की ड्यू डेट जब निकल जाएगी, 139(1) की ड्यू डेट निकल जाएगी, उसके बाद पेमेंट करिए यदि उसको टीडीएस ज्यादा नहीं कटवाना है तो. Otherwise we have to see only 19, 20 and 2021. Even if he has filed for 21, 22, then also we can't consider it. Correct. For 206 AB. तो ये है प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज थोड़ी.
In fourth case, he has not filed for any of the assessment year, but his TDS is more than 50,000. He will be the specified person, and tax will be deducted at higher rate. In next case, he is filed for both the assessment year, so he will not be a specified person. हमको आगे का कुछ देखना ही नहीं है. In next case again he has filed for 1920. तो भी नहीं देखना. ये केस में देखिए थोड़ा सा इसमें भी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि 1920 में उसने रिटर्न फाइल करी, उस समय उसकी 50,000 से कम थी टीडीएस. 2021 में उसने रिटर्न फाइल नहीं करी, बट उस साल उसकी 50,000 से ऊपर थी टीडीएस. तो क्या करने आप? तो हमें उसने एक साल की फाइल कर दी ना रिटर्न, वो निकल गया उस स्पेसिफाइड पर्सन से. हमें बाद बाकी के वो देखने ही नहीं है कंडीशन. ठीक है. उसके बाद वाले केस में उसने रिटर्न भी फाइल नहीं करी, अभी रिटर्न फाइल नहीं करी लेकिन उसका 50,000 से नीचे टीडीएस है, देन आल्सो he will not be specified person. In last case again he has filed for 2021 and his return TDS is also less than 50,000, so he will not be liable for TDS, higher TDS. 206 AA में 20% हमें TDS डिडक्ट करना होता है यदि पैन नहीं है तो. But two changes came in 206 AA from 1st October 2020 when 194 OA introduced. They had said that if the permanent account number has not provided, then the rate will be 5% instead of 20%. And with effect from 1st July 2021, they had introduced that if 194, in case of 194Q, if PAN number is not provided, the TDS rate will be 5% instead of 20%. Okay, so it both the changes made in 206 AA. Now I had given that in 206 A how we have to calculate the TDS, and in 206 AB how we have to calculate TDS, and higher of the A and B will be applicable in any transaction. Both the section is applicable. Both the section are non-obstant provision. 206 AB यदि नहीं apply किया, नहीं उसका provision non-compliance है, then what will be can be the implication? The SEC will be classified as SEC in default in section under section 201 of the Act, and he has to pay interest at the rate of 1% per month. He has to pay penalty maximum the amount of tax in arrear. Penalty in 200C 271C of the Act, equal amount of tax deductible but not deducted, and where there is just said to be short deduction of tax, तो 30% का डिसअलाउंस भी ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि आपने जिस रेट पे टीडीएस काटना था आपने लेस किया है, तो डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंसेस विल बी देयर. एंड लास्ट वन वो अपने लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू मेक डिस्क्लोजर इन 3CD. तो वी शुड एजुकेट आवर क्लाइंट कि भाई आप वो निकाल के रखो 206 AB का कि वो कौन कौन स्पेसिफाइड पर्सन में है कि नहीं है. अदरवाइज इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर 3CD और कि ये हायर रेट पे कटना था कि इसमें कटना था. अभी तक तो हम खाली ये देख के निकल जाते कि भैया कौन से सेक्शन में करना था. अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वेदर ही स्पेसिफाइड पर्सन और उसका टीडीएस का रेट क्या होना था. तो ये एक एक्स्ट्रा बर्डन भी हम टैक्स ऑडिट के पर्पस से हमारे पास आ गया है, और वी शुड एडुकेट आवर ऑडिट स्टाफ ऑल्सो कि वी हैव टू चेक दिस पोर्शन फॉर आवर 3CD रिपोर्ट, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट. Now, if you have 5 minutes, I can take you to so how we can show online 206 AB. Go ahead. Okay. Whether you can see, look, मैं stop sharing करती हूँ and I will share my screen, not my screen. Now you can see the one more window is there. Yeah. Okay. We will go. See, one in compliance check now, there one circular they had issued. Income tax department has issued this circular for compliance check. In this circular, all the things given step by step. If you follow this step, now this is 11 pages of circular. If you will follow this step, it is very much easier for you. So, first for compliance check, first you should have
लॉग इन इनटू द इनकम टैक्स साइट विथ योर 10। आप यदि ऑनलाइन टीडीएस की रिटर्न फाइल कर रहे थे अभी तक भी, ओके, तो आपके पास में इनकम टैक्स साइट पे आपका 10 नंबर होगा। 10 नंबर आपका इनकम टैक्स साइट पे लॉगिन ऑलरेडी होगा आपका। तो यदि आपका लॉगिन है ऑलरेडी 10 नंबर से इनकम टैक्स साइट पे, देन इट विल बी वेरी मच इजियर फॉर यू। अदरवाइज यू हैव टू मेक रजिस्टर्ड योर 10 नंबर ऑन इनकम टैक्स साइट, देन ओनली यू कैन अवेल दिस फैसिलिटी। ओके, अभी ये जो है मैं आपको ये दिखा सकती हूँ कि हम लोग जो अभी करेंगे, मैंने मेरी उसमें किया हुआ है, रजिस्टर्ड किया हुआ है, मेरी फर्म को रजिस्टर्ड है उसमें 10 नंबर में। आई विल टेक इसमें ये जो साइट का एड्रेस दिया हुआ है, वी विल गो बाय दिस साइट। ठीक है, स्टेप 1 में जो साइट दी है ना, इस साइट पे आपको मिलेगा। बट हम यहाँ से डायरेक्टली नहीं जाएंगे, हमको कहाँ से जाना पड़ेगा? फर्स्ट वी विल गो बाय इनकम टैक्स साइट। हम इनकम टैक्स साइट पे जाएंगे पहले। उसके लिए हम यहाँ से भी जा सकते हैं इनकम टैक्स साइट पे। ठीक है, अभी इसमें हमने लॉगिन में गए। इनकम टैक्स की साइट दिख रही है ना सुरेश जी? हाँ हाँ दिख रही है। क्योंकि टेक्निकल पोर्शन में ना कई बार ऐसा होता है हम बोलते जा रहे हैं और पता ही नहीं चलता, हमारी स्क्रीन पे हैंग हो गई होती है। तो here we have to put our 10 number. Okay, I am putting my 10 number because I am already registered in this. Registered. Okay, here login, password. ठीक है, अभी हमारा लॉगिन हुआ 10 नंबर से। आपने देखा ना 10 नंबर पे मैंने लॉगिन किया है। पेंडिंग एक्शन, वी विल गो टू पेंडिंग एक्शन एंड हियर दिस इज रिपोर्टिंग पोर्टल। ओके, वी हैव टू क्लिक देयर एंड वी हैव टू प्रोसीड देयर। अभी ये स्क्रीन आती है, अभी अपने को ये न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है। वी विल गो टू न्यू रजिस्ट्रेशन देन कंटिन्यू। मैंने ऑलरेडी अपने आप को इसमें रजिस्टर्ड किया हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग दिस थिंग कि एंटिटी इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। हाँ, यदि आपका नहीं रजिस्टर्ड रहेगा तो यहाँ पे आपको आगे जाने देगा। यहाँ पे क्या देता है देखिए, ये 61 है और कंप्लायंस चेक, 3 फॉर्म देता है। वी हैव टू क्लिक कंप्लायंस चेक एंड वी विल गो नेक्स्ट। अभी मेरा ऑलरेडी इसमें रजिस्टर्ड है, इसलिए ये उस ऑलरेडी ऐसे आ रहा है। अदरवाइज वो क्या क्या इसमें पूछता है मैं आपको वो भी एक बार दिखा देती हूँ कि ये जो सर्कुलर है ना, इसमें आपको दिख जाएगा। इसमें जब हम रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं ना, तो ये लॉगिन यहाँ तक आए हम लोग, ये रिपोर्टिंग भी किया हमने, ये स्क्रीन भी हमने देख ली, ये स्क्रीन भी देख ली। अब जो स्क्रीन पे हमको आगे नहीं जाने दे रहा है, ऑलरेडी आई हैव रजिस्टर्ड, दैट्स व्हाई they are asking this detail. We have to provide entity detail. Why I'm showing कि आप ये डिटेल हैंडी रखो अपने पास में करने के टाइम में, नहीं तो एक थोड़ी थोड़ी देर में फिर वो आउट हो जाता है नहीं तो लॉगिन से। We have to give a name, PAN number, billing address and state, country, all these things, and then we have to press add principal officer. Okay, when we will press click add principal officer, they will ask us these details. अभी जैसे मैंने मेरी फॉर्म में मुझे खुद को ही मैंने रजिस्टर किया हुआ है, तो जैसे मैं यहाँ पर पैन नंबर दूंगी, बाकी की डिटेल भरूंगी। हाँ, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, आई हैव टू गिव माय मोबाइल नंबर बिकॉज ओटीपी विल कम ऑन दैट, लिंक विल कम ऑन दैट ईमेल आईडी। ओके, मैं जब यहाँ पर ये पूरा डाल देती हूँ, सबमिट करती हूँ, देन ये एक एक्नोलेजमेंट, ये पेज आता है जिसमें ये एक्नोलेजमेंट वी कैन डाउनलोड कि वी हैव रजिस्टर्ड इन रिपोर्टिंग पोर्टल। और ये जब आने के बाद में हमें हमारी ईमेल आईडी पे लिंक आता है और पासवर्ड आता है। ओके, जैसे हम उसमें लिंक में पासवर्ड में जाते हैं और लिंक में जाते हैं, वो लिंक से हम नए पासवर्ड से खोलते हैं, दे इमीडिएटली दे विल आस्क अस टू चेंज आवर पासवर्ड। ओके, एट दैट टाइम वी हैव टू चेंज आवर पासवर्ड एंड पासवर्ड चेंज करने के टाइम में आई विल से यू कि वो 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछते हैं।
आपको पता है अपने लोग जहाँ भी अपने लोगों ने पासवर्ड डालते हैं तो सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछते हैं कि अपने को पासवर्ड यदि रिवाइव करना हो, भूल गए हो, फॉरगेट कर गए हो, तो उसके लिए तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन उसके बहुत अलग टाइप के हैं, अलबेले हैं। फर्स्ट आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है वो डालनी है and trust me, there is no one favorite movie of mine. I have many number of movies which is favorite, so it will be very difficult to remember which movie I had put in that. So, and second question is the maker of your first car. Okay. Okay. तो मैंने तो जिसको भी किया है ना, मैंने एक्सेल में चार्ट बना के रख लिया है कि किसके में क्या आंसर डला हुआ है. Yeah, you have to keep a record. Yes, yes. Otherwise, it's very difficult to remember ना कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है और मेकर ऑफ फर्स्ट कार कौन है. तो इसके लिए दिस इज बेटर टू प्रिपेयर द लिस्ट कि आप क्या डाल रहे हो. ऑप्शन नहीं है, खाली दो ही क्वेश्चन है. दो ही क्वेश्चन है उसमें, और कोई ऑप्शन नहीं है. इफ यू वांट टू रिवाइव योर पासवर्ड, इसके लिए मैंने आपको स्पेसिफिकली ये लिया है क्योंकि इसमें नहीं लिखा हुआ है, बट मुझे जब मैं करने लगी तो मुझे वो क्वेश्चन मिले. दैट्स व्हाई आई हैव टेकन कि नहीं, ये तो बड़ा अलग सी ही चीजें दिखने मिली है. इस तरह का क्वेश्चन तो हमने कभी देखा ही नहीं था. तो पासवर्ड का पैटर्न में भी इन्होंने ऐसा किया है. देखिए, पासवर्ड वुड बी कंटेनिंग 0 to 9 डिजिट, लोअर केस A to Z एंड अपर केस लेटर A to Z, एंड 3 कैरेक्टर में से वो डाल सकते हैं. ठीक है, ये नॉर्मल है. बट ये जो आप देखोगे पासवर्ड पॉलिसी, मैंने इसलिए स्क्रीनशॉट लेके रख लिया उस समय. What is your favorite movie? What was the make of your first car? This is like going to drive-in and watching a movie. Yeah, because site तो खुलेगी नहीं. तो this is the case. हाँ, तो अभी हम लोग कहाँ थे? हाँ, यहाँ तक आ गए थे. ठीक है, तो ये करके हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया. नाउ वी विल गो टू, अब इसका कंपनी का जो था रजिस्ट्रेशन वो कंप्लीट हो गया. नाउ वी विल कम टू माई दिस थिंग. ठीक है, हम यहाँ से लॉग आउट कर जाते हैं. लीव साइट, कंपनी का लॉग खत्म हो गया. अभी मुझे मेरा लॉगिन में जाना पड़ेगा, जो मैंने पेन नंबर से मेरा जो लॉगिन बनाया. नाउ आई हैव टू ओपन फ्रॉम माई लॉगिन. यहाँ पे देखिए, जब ये जाते हैं तो ये रजिस्टर और लॉगिन दोनों आते हैं. रजिस्टर नहीं करना, हमें लॉगिन में जाना है. एंड वी विल गिव माय पैन नंबर. गलत हो जाएगा. कैश लो कौन था? मैंने मेरे लॉगिन में व्हेन आई वेंट, देखिए कंप्लायंस चेक करके आ रहा है उसमें. नाउ दिस इज शोइंग ओनली 1 PAN नंबर बिकॉज आई एम रजिस्टर्ड ओनली इन 1 PAN. You can be प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन. Okay. एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के भी आप प्रिंसिपल ऑफिसर हो सकते हो. एट दैट टाइम वो पूरी ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी कि आपको कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको यू वांट टू चेक कंप्लायंस. ओके, बट मुझे लगता है कि उसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि आई कैन चेक 10,000 PAN नंबर विथ माई दिस ID. ओके, एट ए टाइम. तो मुझे दूसरे में क्यों मुझे अपने आप को प्रिंसिपल ऑफिसर रजिस्टर्ड करना है. ठीक है, यहाँ पे गए, ये हुआ. प्रोसीड. Now you can see that here it is a compliance check and section 206 ABCCA. Here it is there given. सुरेश जी, आपका पैन नंबर बताइए. मुझे तो जवानी याद भी नहीं है. कॉपी पेस्ट करके डालता हूँ हमेशा. मेरा ले लीजिएगा. हाँ, बोलिए ना. AB TPN हाँ, TT तमिलनाडु T T P पूना N नागपुर 6869 J.
यही है। जैसे ही हमने ये डाला, आ गया रिजल्ट यस मैम। कि he is not specified person. Means he is filing his return for file any of the return or his TDS is not more than 50,000, like कोई भी रीजन हो सकता है, बट वो स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है, हमें तो खाली उतना देखना है। और यदि गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये मिलता है कि स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है, आई थिंक इट्स अ वैलिड प्रूफ, मोर वैलिड प्रूफ कि हम दूसरे से डिक्लेरेशन ले रहे हैं, उससे 26 एस ले रहे हैं, वो गलत दे सकता है, वो ITR ले रहे हैं, वो गलत दे सकता है। व्हाई आई विल शो माय इनकम टू एनी अदर पर्सन? मैं क्यों अपनी डिटेल दूसरे से बताऊं कि मुझे किससे TDS मिलता है, मैं किससे काम करती हूँ, मेरी इनकम में कितनी बताती हूँ। अच्छा, यदि आप ये नहीं देखना, सब देखो यहाँ पर एक ये PDF दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, एंड यू कैन प्रोवाइड दिस टू योर पर्सन, द पर्सन हु आर पेइंग यू एंड हु आर आस्किंग यू टू गिव 26 एस और ITR कॉपी। Oh, that's nice. आप ये उसको दे दो ना कि देखो मेरा इनकम टैक्स वाला ही बोल रहा है कि मैं स्पेसिफाइड पर्सन नहीं हूं, तो मेरा हायर TDS नहीं डिडक्ट होगा। ठीक है, कितना इजी है ना ये। This is very useful, yes. तो आपने एक बार, यदि आपके खुद के, आप किसी भी आपकी खुद की फर्म में या किसी में भी यदि आप TDS रिटर्न भरते हो, आप खुद को प्रिंसिपल ऑफिसर करके आप अपनी खुद की निकाल के जिसको चाहिए आप दे दो कि भैया ये देने में तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, जिसको लेना है ले लो। क्योंकि इसमें मेरा पूरा देखिए, इन लोगों ने इतनी भी सीक्रेसी रखी है कि दे आर नॉट प्रोवाइडिंग योर फुल नेम। Yes. जितनी जरूरत है उतनी ही डिटेल दी है इसमें। एंड इफ इट इज फ्रॉम इनकम टैक्स साइड, देन दैट मींस दे आर सर्टिफाइंग कि वी आर नॉट स्पेसिफाइड पर्सन। ठीक है, अभी ये हुआ कि एक जन का, अभी आप बोलोगे ये बिल्डर के केस में तो कितने सारे होते हैं, 300-200 रहेंगे। हम यहाँ पर इन्होंने बल्क सर्च का ऑप्शन दिया है। अभी आप देखोगे इसमें मैंने अभी एक बिल्डर को निकाल के दिया, 958 रिकॉर्ड एक बार में निकाल के दिए थे उसको। ठीक है, उसके लिए यू हैव टू डाउनलोड दैट CSV टेम्पलेट। CSV टेम्पलेट में क्या होता है वो भी दिखाती हूँ आपको कि CSV टेम्पलेट में कुछ भी नहीं है। देखिए, सिर्फ और सिर्फ पेन डालना है, पैन नंबर डालना, ऊपर खाली ये पेन लिखा हुआ आता है, A1 में पेन लिखा हुआ रहता है, बाकी पूरा ब्लैंक रहता है, पूरी एक्सेल शीट ब्लैंक रहती है। यू हैव टू पुट ओनली पेन नंबर। तो यहाँ मैंने सारे पेन नंबर डाल दिए एंड उसको सेव किया एंड अपलोडेड हियर। यहाँ पे जो अपलोड करने आता है यहाँ अपलोड कर दिया। हाँ, मेरा जब इतने सारे 958 थे, इट विल टेक 15 मिनट्स मिनिमम, क्योंकि सबका उसे चेक करके बताना है, तो इसके लिए उसने टाइम लिया। एंड व्हेन आई अपलोडेड, देन एट दैट टाइम उसने लिखा था कि ये अवेलेबल। जब अपलोड हो गया था उस समय अपलोडेड आया था, उसके बाद में आया अवेलेबल। जब तक ये अवेलेबल का स्टेटस नहीं आता है, यू कांट डाउनलोड इट। ओके, जैसे ही अवेलेबल आ जाएगा यू कैन डाउनलोड। एंड जैसे ही आप डाउनलोड करते हो तो ये डाउनलोडेड भी बताता है कि ऑलरेडी आपने डाउनलोड किया हुआ है। बट इफ यू वांट यू कैन अगेन डाउनलोड इट। वो बार नहीं करता कि यू कांट डाउनलोड, बट वो आपको बताता है कि आपने डाउनलोड किया हुआ है। ओके, और जब डाउनलोड कर लेते हो और उसके थोड़े दिन के बाद में ये लिंक एक्सपायर्ड हो जाती है। आप सोचोगे कि महीनों तक पड़ी रहेगी, वो अभी देखिए मेरा लिंक एक्सपायर्ड दिखा रहा है। इफ आई वांट टू अगेन डाउनलोड, कि मेरा यदि वो फाइल मिस हो गई या कुछ हो गया, अगेन आई हैव टू अपलोड दैट फाइल। ठीक है, अभी लेकिन वो फाइल आती है तो कैसी आती है वो भी आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये ऐसी एक्सेल फाइल आ जाती है पूरी। ठीक है, अब वी आर कंसर्न कि स्पेस, ये F नंबर कॉलम में स्पेसिफाइड पर्सन में नो है तो हमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। जहां यस होगा हमने फिल्टर मारा, जहां पर यस है बस उसको ही देखना है कि उसको उसका हमें हायर डिडक्शन करना है बस। ठीक है, जैसे हमने ये 968 वाले की हमने ऐसी की हुई थी, इसमें 1-2% देखिए, इसमें स्पेसिफाइड पर्सन था, हमने फिल्टर लगाया, जो ब्लैंक था और जो यस था उसको हमने फिल्टर लगाया और हमारे पास इतनी सारी डिटेल आ गई कि उसके पेन इनवैलिड थे या जो भी था। ये डिटेल हमने उसको भेज दी कि भैया इसको करेक्ट करके ले लो।
तो इवन इफ वी वांट टू चेक फॉर आवर 3CD पर्पज, उसके लिए भी हम ये काम में ले सकते हैं। हम हमारी फर्म के प्रिंसिपल ऑफिसर बनते हैं, हम वहाँ के सारे पैन नंबर उनसे ले लीजिए एंड वी कैन चेक ना कि वो स्पेसिफाइड पर्सन है कि नहीं। हमको एक साथ में ये 5 मिनट के अंदर हमारा काम हो जाएगा। ओके, Thank you. इसमें कहीं कुछ किसी को नहीं समझ में आया हो या कुछ क्वेरी हो तो ठीक है। तो अभी ये 200, तो ये हमें देखने की जरूरत ही नहीं है कि वो बंदे का 50,000 डिडक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, और टीडीएस उसने इनकम टैक्स रिटर्न भरी है कि नहीं भरी है। वी डोंट रिक्वायर टू सी एनीथिंग। वो ओरिजिनल नंबर किधर, कौन से ईमेल में आएगा, कंपनी का क्या पर्सनल आदमी? पर्सनल ईमेल में आएगा। ओके, पर्सनल ईमेल में जो प्रिंसिपल ऑफिसर में आप जो डालेंगे ना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, उसमें आएगा। दो ईमेल आईडी मांगते हैं? एक ईमेल आईडी आपकी कंपनी की होती है और एक आपकी होती है। कंपनी की ईमेल आईडी में कुछ नहीं आएगा, आपकी ईमेल आईडी में ही आएगा। आप अल्टरनेट ईमेल आईडी भी अपनी दे सकते हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसमें वैसा नहीं है कि 10 में ही दे सकते हो, वैसा नहीं है। हाँ, अभी की टेक अवे, बार बार मैंने वही बात बोली है कि 206(c)(1) इज ऑन रिसीट, नॉट ऑन सेल। यू शुड कीप इन माइंड, नो नीड टू टेक एनी डिक्लेरेशन फ्रॉम बायर अंडर फॉर TCS और TDS। जो अभी सब चल रहा था कि मेरे पास भी आया था कि मैडम आप TDS का 226(c)(1) के लिए या 194(q) के लिए डिक्लेरेशन मांग रहे हैं। देयर इज नो नीड, बिकॉज मैंने जो जैसे एग्जांपल के लिए बताया कि 194(q) ही पहले आएगा, तो उसमें डिक्लेरेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। एंड फॉर ईच एंड एवरी पर्सन 206(a)(b) चेक इज मैंडेटरी। आपको जो भी पेमेंट करेंगे सब सेक्शन में ये एप्लीकेबल है। 194 में N में नहीं है, जो अपने को एप्लीकेबल नहीं है, तो सबके लिए हमें चेक करना है। Then don't give your ITR and 26(a) to any dealer. You can give that paper to the person who want. Compliance checks under section 206(a)(b) can be checked online by the dealer. यदि आप नहीं दे रहे उसको भी बोल सकते हो, बट वो बोलेगा कि नहीं पता है तो आप अपना दे ही दो। DSC, जो ये भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने एक ये लाइन ले ली इसमें कि DSC to be registered on individual PAN. After that, add key person in the organization login in income tax portal, then DSC will be automatically registered. पहले हमें होता था कि कंपनी में, पार्टनरशिप फर्म में, जिसमें भी हमें करना होता था ना, सब में हमें रजिस्टर्ड करना होता था DSC. Now that burden has reduced. We have to register DSC in our PAN only. और जैसे ही हम वो लॉगिन में जाके लॉगिन में प्रोफाइल में जाइए, लॉगिन करके इनकम टैक्स में, वहाँ प्रोफाइल में जाके की पर्सन में आप जैसे ही उसका पैन नंबर डालते हैं, वैसे ही वो डिटेल सारी ऑटोमेटिकली आ जाती है कि उसमें उसका DSC रजिस्टर्ड है कि नहीं है। तो वो ऑलरेडी उसमें फिर वो रजिस्टर्ड हो जाता है। तो वैसे हमें अलग से DSC रजिस्टर नहीं करनी पड़ेगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिसके लिए मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, जब मैंने ऑनलाइन TDS की रिटर्न फाइल करी नई साइट बनने के बाद में, वो एक्नॉलेजमेंट जनरेट होके आया, ठीक है, बट वो जो एक्नॉलेजमेंट जनरेट होके आया ना, वो एक्नॉलेजमेंट बहुत अलग टाइप का था एंड उसमें कुछ भी डिटेल नहीं थी। मैंने इसमें रखा हुआ कि नहीं रखा, शायद मैंने नहीं रखा, भूल गई मैं। तो उसमें क्या था कि उसमें जैसे हमारे इनकम टैक्स का एक्नॉलेजमेंट आता है ना, वैसा था। उसमें न तो फॉर्म नंबर लिखा हुआ है, ना उसमें डेट लिखी हुई है, ना उसमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ भी उसमें लिखा हुआ नहीं है। जस्ट दे हैड गिवन द रिसीट नंबर एंड दैट रिसीट नंबर कंटेन हमने कुछ डिजिट आफ्टर दैट DDMMYY है, ठीक है। फ्रॉम दैट एक्नॉलेजमेंट आई वाज अनेबल टू डाउनलोड TDS सर्टिफिकेट। तो TDS सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए हमें इनकम टैक्स की साइट पे इन करना, पूरा ढूंढा। जैसे मुझे जो भी रिसीट नंबर मिलता है एक्नॉलेजमेंट, वो बीच में क्रॉस आते हैं, शुरू के 4 डिजिट रहते हैं, लास्ट के 4 डिजिट रहते हैं, बीच में सारे क्रॉस आते हैं, तो वो पता नहीं चल पा रहा था। आई वेंट टू इनकम टैक्स साइट। इनकम टैक्स की साइट पे 10 में हमने रजिस्टर किया। 10 में जब हम लॉगिन किया, मैंने 10 में लॉगिन करने के बाद में व्यू फाइल रिटर्न में जाके वो हमें रिसीट दिखती है। तो उसमें हमें दोनों रिसीट दिखती है, जो हम वो भी कभी दिखती है आफ्टर प्रोसेसिंग। If you will check before processing, then you will get only that acknowledgement which you got before at the time of filing. But the acknowledgement number you want to download the TDS certificate, you will get after processing of that return.
आप ऑफलाइन जब फाइल करते हो एनएसडीएल सेंटर में, उस समय आपको उस समय एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जा रही है. But if you are filing online, so at that if the filing online, then you will get acknowledgement number after processing of the return in income tax site. Okay. So thank you for patient hearing. Thank you And so this much. is all from my side. Thank you so If much. you have any question, then you can ask. Otherwise, we can wind up. Anyone has any question? Ghanshyamji, will you give vote of thanks to her? You are more acquainted with income tax, I suppose. Pinky ji, I know